السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ مکمل ناول ہے رسم، اور جسے تحریر کیا ہے نبیلہ عزیز نے۔ چلتے اپنے ناول کی طرف۔ طلاق۔ کتنی ہی دیر سے اس کے دماغ میں اس ایک لفظ کی بازگشت ہو رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر سے وہ کچھ کہہ نہیں سکا تھا، اس کے لب ہی خاموش نہیں ہوئے تھے۔ وہ تو جیسے سر سے پاؤں تک خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ دوسری طرف سے طلاق کا مطالبہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں برخوردار خاموش کیوں ہو گئے؟ سید سراج حسین کی بارو آواز پہ وہ یکدم چونک کے اس سنگین لفظ کے حصار سے باہر آیا تھا، اور محض چند سیکنڈز میں ہی اپنے تمام تاثرات پر قابو پاتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے یا پھر میری زوجہ محترمہ کا؟ اس کا لہجہ دوبارہ سے پرسکون اور ہموار ہو چکا تھا۔ فیصلہ چاہے کسی کا بھی ہو، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی کافی تحمل سے بولے تھے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے مرشد سائیں؟ یہ میری زندگی کا معاملہ ہے۔ اس نے لفظ میری زندگی پر کافی زور دے کر کہا تھا۔ یہ تمہاری زندگی کا ہی نہیں برخوردار، ہماری عزت، غیرت اور رسم و رواج کا معاملہ بھی ہے، جو بقول تمہارے کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، مگر تم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے ہماری عزت، غیرت اور رسم و رواج موت اور زندگی کی سی اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک پل کے لیے سید سراج حسین کی رنگت غصے کی آنچ سے سرخ پڑ گئی تھی۔ مرشد سائیں، آپ کو شاید میری بات سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں آپ کی عزت و غیرت کو غیر اہم کہنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب آپ کے رسم و رواج کے خلاف میں کل بھی تھا اور آج بھی ہوں۔ آپ نہ جانے کب سے اس بیجا رسم پر عمل کرتے ہوئے کتنی زندگیاں تباہ کر چکے ہیں، اور کتنے دلوں کو برباد کیا ہے آپ لوگوں نے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے مرشد سائیں، اس بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنے دل سے وابستہ ایک دل کو عمر بھر کی تنہائی اور خاموشیاں نہیں سونپنے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ کافی مضبوط اور سنجیدہ لہجے میں کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ دیکھو لڑکے، آج سے کچھ عرصے پہلے ایک فیصلہ تم نے کیا تھا اور اپنی بات منوائی تھی، لیکن ہم چپ رہے تھے۔ آج ایک فیصلہ ہم کر رہے ہیں اور اپنی بات منوائیں گے، لیکن تم صرف چپ رہو گے۔ وہ انتہائی دو ٹوک اور وسیلے انداز میں بولے تھے، لیکن کسی سے مروب ہونے والا اور اپنے مقام سے پیچھے ہٹنے والا وہ بھی نہیں تھا۔ وہ اگر سید فرید حسین کے بیٹے تھے تو وہ بھی سلطان گردیزی کا اکلوتا لاڈلا پوتا تھا، اپنی وسیع جاگیر کا تنہا وارث۔ میں حق پر تھا اور میں نے ایک جائز فیصلہ کیا تھا، جبکہ آپ سراسر ظلم کر رہی ہیں۔ وہ ان کی ہر بات، ہر فیصلے سے انکاری تھا۔ اگر مظلوم خود کہہ دے کہ مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوا تو پھر؟ سید سراج حسین فخریہ انداز میں سکون سے بولے تھے، لیکن وہ ایک دم بری طرح سے چونک گیا تھا۔ ایک پل میں اس کی سوچ کہاں سے کہاں چلی گئی تھی، مگر پھر فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے بغور ان کا چہرہ جانچا تھا۔ جو تم بخوبی سمجھ چکے ہو، وہ ابھی بھی پرسکون تھے۔ لیکن میں طلاق پھر بھی نہیں دوں گا، اس نے سختی سے کہتے ہوئے نفی میں اپنی گردن ہلائی تھی۔ دیکھو، تم شاید بھول رہے ہو کہ اس وقت بھی تم نے یک طرفہ فیصلہ کیا تھا، اور آج بھی تم یک طرفہ فیصلے پر اڑے ہوئے ہو۔ وہ تمہارے فیصلے میں نہ کل شامل تھی اور نہ آج ہوگی۔ تمہاری زبردستی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس کی ہمت توڑنے کی ایک بھرپور کوشش کی تھی، لیکن وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ میں ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں، پھر آپ نے جو کہا میں وہی کروں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، ایک مرد کا وعدہ۔ اس نے کافی سلیقے سے ان کو اپنی بات پر لانا چاہا تھا۔ تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے غصے سے کہا تھا۔ جی میں جانتا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت اس کے چچا حضور سے مانگ رہا ہوں۔ اس نے بڑے احترام سے طنز کا تیر چھوڑا تھا، اور اگر ہم اس چیز کی اجازت نہ دیں تو وہ صوبے پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے تھے، انداز میں سختی تھی۔ تو پھر دوبارہ طلاق کے لفظ کو سوچیے گا بھی مت، اور ان کے لیے حد سے زیادہ ٹیڑھا ثابت ہو رہا تھا۔ برخوردار، ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ گھر کا ہے تو گھر میں ہی نمٹ جائے، نہ تمہاری عزت بگڑے اور نہ ہمارا نام اچھالا جائے، ورنہ کورٹ کچہری تک جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے اسے تقریباً دھمکی دی تھی، جیسے کچھ پاور کروانا چاہا ہو۔ ٹھیک ہے مرشد سائیں، اگر آپ کورٹ کچہری تک جانے کا شوق بھی پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہی کر لیتے ہیں۔ اب میں آپ کی طرف سے عدالتی کارروائی کا منتظر رہوں گا اور دیکھوں گا کہ عدالت و شریعت کا مجرم کون ہے۔ وہ ان کے منہ سے عدالت کا ذکر سن کر بہت خوش ہوا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی عدالت کا رخ نہیں کریں گے۔ لیکن میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ میں ایک بار روبرو اس سے ملنا چاہتا ہوں، پھر چاہے تو طلاق ہو جائے اور چاہے تو۔ وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جبکہ سید سراج حسین شدید کشمکش کا شکار نظر آ رہے تھے، جیسا فیصلہ اور اس کا انجام سوچ رہے ہوں۔ دیکھیے مرشد سائیں، میں ایک مرد بچہ ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے عزت دار اور غیرت مند بھی ہوں۔ اپنا وعدہ، اپنی زبان نبھانا جانتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، یک طرفہ فیصلہ اور کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اس نے انہیں بھرپور یقین دہانی کرائی تھی، اور وہ کچھ سوچتے ہوئے صوفے سے کھڑے ہو گئے تھے، جیسے کسی نتیجے پہ پہنچ گئے ہوں۔ ٹھیک ہے، کل تم حویلی آ جانا، وہ کہہ کر رکے نہیں تھے، بلکہ تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر آ گئے تھے، جہاں ان کے سیکیورٹی گارڈز الرٹ کھڑے تھے، جبکہ وہ ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ گمسم کھڑا تھا۔ اس کی سوچ کہیں اور تھی، کیونکہ اس سارے قصے میں ایسا ایک نقطہ بھی تھا جو فراموش نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس نقطے پر نہ انہوں نے بات کی، نہ ہی اس نے خود ذکر کیا تھا۔ حالانکہ سب سے اہم پوائنٹ وہی تھا، وہ اس پہ بات نہیں ہوئی تھی۔
शहर बानो, सुना है तुम्हारी शादी होने वाली है। सैयद सराज हुसैन की बड़ी बेटी ज़हरा ने काफ़ी गहरी नज़रों से देखते हुए सोचा था। आपने सुना है तो ठीक ही सुना होगा। शहर बानो अभी अभी वज़ू करके आई थी और नमाज़ पढ़ने के लिए सर पे दुपट्टा लपेट रही थी जब इसकी चचाज़ाद बहन अपने चेहरे पर ढेरों तजस्सुस सजाए इसके कमरे में दाखिल हुई थी। लेकिन शहर बानो ने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया था, बस नॉर्मल से अंदाज में जवाब देकर आगे बढ़ गई थी। लेकिन ज़हरा वापस जाने के बजाय वहीं बैठकर इसकी नमाज से फारिग होने का इंतज़ार करने लगी थी। इसे शहर बानो की शादी का सुनकर बहुत तजस्सुस और दिलचस्पी हो रही थी कि आखिर शहर बानो का क्या बनेगा, वो क्या करेगी, कैसे रहेगी उम्र भर इस तरह, क्योंकि इस शादी इस रस्म को निभाना तरक दुनिया हो जाने के बराबर ही था। हर दुनियावी चीज़ को छोड़ देना इतना आसान काम नहीं था। जैसे पप्पो फातिमा ज़िंदगी भर बसर कर रही थी, इसी तरह अब शहरबानो को भी ज़िंदगी गुजारनी थी। क्या बात है ज़हरा, अभी आप इस तरह क्यों बैठी हैं? ज़हरा की सोच का तसलसल शहरबानो की आवाज़ से टूटा था, जो नमाज़ पढ़कर आ चुकी थी। कुछ नहीं शहरबानो, मैं सोच रही थी कि तुम किस तरह सब कुछ छोड़ दोगी, दिन रात इबादत में कैसे गुजारोगी? ज़िंदगी तो पूरे घर में गुजारने के लिए होती है, घर के एक कोने में नहीं। ज़हरा बेचारी सच ही तो कह रही थी, मगर इस रस्म को ज़िंदा जावेद रखने वालों को भला कौन समझा था? अगर फूफी फातिमा अपने बाप और भाइयों के लिए ये सब कर रही हैं तो मैं भी कर लूँगी। वो भी तो मेरे जैसी और मेरी हम उम्र ही थी जब उन्होंने ये शादी की थी। वो बेहद नरमी से बोली थी, जबकि ज़हरा ने नागवारी से देखा था। मैं होती तुम्हारी जगह तो मैं तो ऐसा हरगिज़ ना करती, ये भी भला कोई रस्म है? ज़हरा अपने बड़ों के खिलाफ थी और मिजाज में भी खासी तेज़ तरार थी, लेकिन शहरबानो सब लड़कियों में से खासी खामोश तबा, ढीली ढाली सी नरम फितरत की लड़की थी। किसी से लड़ना झगड़ना या अपने हक में बोलना इसे हरगिज़ नहीं आता था। वो किसी भी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती पर बोल ही नहीं सकती थी, बड़ों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। इसकी नज़र में जैसा है जो भी है वो बस अच्छा है। वो कभी किसी चीज़ पर एतराज़ नहीं करती थी। कुछ लोग इसकी इस फितरत को इसकी अदा समझते थे, लेकिन सच तो ये था कि इसकी खूबसूरती ही कुछ ऐसी थी कि वो जो भी कहती, जो भी करती, वो इसकी अदा बन जाता था। शहरबानो, इनकार कर दो इस किस्म की शादी से। सिर्फ करने ही तो पड़ने हैं और फिर उम्र भर के लिए कोठरी में बैठ जाना है। नहीं ज़ोहरा आपी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, लेकिन यार मैं होती तो ज़रूर सोच सकती थी। मुझ में और आप में फ़र्क भी तो बहुत है। मैं सैयद मेराज हुसैन की सबसे छोटी साहबज़ादी सैयदा शहरबानो, जिसके माथे पर सदक़े की लकीर है, और आप सैयद सिराज हुसैन की सबसे बड़ी साहबज़ादी सैयदा ज़ोहरा बतूल हैं, जिसके माथे पर शादी की लकीर है, और यही लकीर हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाती है। वो काफ़ी सादगी से बोली थी। लेकिन शहरबानो, ज़ोहरा ने कुछ कहना चाहा था। नहीं ज़ोहरा आपी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए अच्छा सोच रही हैं, लेकिन साथ में ये भी तो है कि मैं अपने बाप और भाइयों के लिए अच्छा सोच रही हूँ। मेरी ऐसी ज़िंदगी भला किस काम की जो मेरे अपनों के काम ना आए। मैं तो किस्मत हूँ जिसे उन्होंने सदका बनने का एजाज़ दिया है। शहरबानो ने नरम मुलायम लहजे में कहते हुए ज़ोहरा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो समझने वाली नहीं थी। इसीलिए अल्लाह ने इसकी मदद के लिए मरियम को भेज दिया था। क्या हो रहा है भाई? दोनों कज़न्स बड़े संजीदा मूड में लग रही हो। मरियम ने मुस्कुराते हुए आकर शहरबानो को कोहनी मारी थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। इसने बात को टाल दिया था। वो हर एक के सामने इस शादी के ज़िक्र को छेड़कर इनके सवालों का निशाना नहीं बन सकती थी, बल्कि वो तो हर मुमकिन तौर पर इस रस्म से बचने की कोशिश करती थी। लगता है इस हवेली में अल्लाह ने एक यही सादतमंद रूह भेजी है, जो सब चाहते हैं वही करती है। ज़ोहरा ने शहरबानो को देखकर तंसिया कहा और उठ खड़ी हुई थी। शहरबानो चुप खड़ी थी। पागल, वो सर झटक कर चली गई थी। वो ईशा की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुआ ही था कि बड़ी अम्मा का पैगाम रसा आ गया। साहब जी, बड़ी अम्मा ने आपको अपने कमरे में बुलाया है। मुलाज़मा ने मुअद्दब से लहजे में पैगाम दिया था, लेकिन उसे इस पैगाम से काफ़ी हैरानी हुई थी। भला इस वक्त आधी रात को ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आन पड़ा था कि उन्होंने इसे अपने कमरे में फ़ौरी तलब किया था? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। इसने अपने हैरत को कंट्रोल करते हुए मुलाज़मा को जाने का इशारा किया था, और फिर जायनमाज़ समेटकर बेड से अपनी गर्म चादर उठाकर कंधों पर डालते हुए खुद भी बाहर निकल आया था। बाहर पूरी हवेली में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। राहदारी और हाल कमरे के तमाम फ़ानूस बुझे हुए थे। अलबत्ता नाइट बल्ब हर दीवार पर रोशन थे, जिनकी मद्धम रोशनी में वो मजबूत कदम उठाता सीढ़ियाँ उतर आया था। बड़ी अम्मा के कमरे के आधे खुले दरवाजे से ट्यूबलाइट की रोशनी एक लकीर की सूरत बाहर तक आ रही थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसने दस्तक देकर इजाज़त चाही थी। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। अपनी दादी से इजाज़त कैसी? बड़ी अम्मा ने अपने जहाज़ी साइज़ बेड पे गाँव तकिए से टेक लगाई, तस्बीह हाथ में पकड़े नीम दराज बैठी थी। इसकी आवाज़ सुनकर अपनी कोहनी का सहारा देते हुए उठ बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मा, आप ठीक तो हैं ना? इसने अंदर दाखिल होते ही तशवीश का इज़हार किया था। हाँ पुत्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ बैठो मेरे पास। उन्होंने कंबल हटाकर इसके बैठने के लिए जगह बनाई थी। वो सादतमंदी से इनके करीब ही बैठ गया था, मगर चौंका वो इस वक्त जब इसकी नज़रें दाईं दीवार से लगे सोफ़े की सिमत उठी थीं, जहाँ इस वक्त इसके अब्बा साईं और अम्मा साईं बराए जमान थे। वो काफ़ी मुतफक्कर नज़र आ रहे थे। खैरियत तो है बड़ी अम्मा? आप लोग इस तरह क्यों बैठे हुए हैं? कोई परेशानी है क्या? इसने गर्दन मोड़कर बड़ी अम्मा को देखा। हाँ पुत्र, सब खैरियत है, तुम परेशान ना हो। ये बताओ क्या कर रहे थे? कहीं नींद से तो नहीं जगा दिया रज़िया ने? बड़ी अम्मा ने प्यार से इसके कंधे पर हाथ फेरते हुए पूछा था। नहीं, मैं अभी नमाज़ पढ़ रहा था। इस वक्त नमाज बाजमात क्यों नहीं पढ़ी? बड़ी अम्मा ने इस्तफसार किया था। शहर से वापस गांव आते हुए 10 बज गए थे। रास्ते में पता ही नहीं चला, इसलिए मस्जिद नहीं जा सका। इसने वजाहत दी तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया था। खाना खा लिया तुमने?
نہ جانے کیوں وہ اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کر رہی تھی، جیسے کچھ کہنے سے پہلے تمہید باندھ رہی ہوں۔ جی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا ہی کھایا تھا، اب اسے اندر ہی اندر الجھن سی ہونے لگی تھی کہ ایسا کیا مسئلہ ہے جو وہ لوگ رات کے اس پیر حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک نظر اپنے والدین کی سمت دیکھا جو خود کسی کشمکش کا شکار لگ رہے تھے۔ لگتا ہے تم کچھ تھکے ہوئے ہو، بڑی اماں نے اپنے بہو اور بیٹے کو دیکھتے ہوئے پوتے سے تقریباً چوتھا سوال کیا تھا، جو خود کچھ الجھی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کچھ کہنے اور نہ کہنے کی کشمکش میں ڈول رہی ہوں۔ نہیں بڑی اماں، ایسی کوئی بات نہیں، تھکن بھلا کیسی؟ آپ بتائیں، آپ نے شاید مجھے کسی کام سے بلایا تھا؟ بالآخر اس نے خود ہی پوچھ لیا تھا، کیونکہ وہ تو ٹال مٹول ہی کرتی نظر آ رہی تھی، جیسے اسے بلا کر کچھ بتانے کا ارادہ بدل گیا ہو۔ ہاں پتر، بہت دنوں سے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر کبھی تم دیر سے گھر آتے تھے اور پھر شہر رک جاتے تھے، اسی لیے سوچا آج بات کر ہی لوں۔ بڑی اماں بات کرتے کرتے ایک بار پھر وقفہ لینے کے لیے رک گئیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کا لاڈلا چہیتا پوتا جتنا سعادت مند، سمجھدار اور اچھا ہے، اتنا ہی ضدی اور باصول بھی ہے۔ غلط بات تو برداشت ہی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کسی کی حق تلفی ہوتے دیکھ سکتا تھا، چاہے وہ حق تلفی اس کے اپنے گھر میں اس کے ملازموں کے ساتھ ہی ہو رہی ہوتی، وہ ان کے حق میں بھی بول اٹھتا تھا۔ جی کہیے بڑی اماں، میں سن رہا ہوں۔ وہ ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ایک منت مانی تھی، وہ اب اس منت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن یہ منت تب تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک تم میرا ساتھ نہ دو۔ اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ پہلے تم کو بتا دوں اور تم سے پوچھ لوں۔ انہوں نے کچھ متوجہ سے انداز میں کہا تھا اور وہ اتنی سی بات پر حیران ہوا تھا۔ ارے بڑی اماں، آپ کی منت میں بھلا میں کیا کہوں گا، آپ پوری کر دیں اپنی منت۔ وہ بہت ریلیکس انداز میں بولا تھا۔ نہیں بیٹا، میری منت میں پوری نہیں کر سکتی، میری منت تو تم نے پوری کرنی ہے، وہ آہستگی سے بول رہی تھی اور ان کے چہرے پر چھائی پریشانی اور عاجزی نے اسے ٹھٹکا دیا تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ کوئی گمبھیر مسئلہ ہے اور یہ لوگ مجھ سے کہہ نہیں پا رہے۔ ابا سائیں، آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے، کیسی منت پوری کروانی ہے بڑی اماں نے؟ اس نے اپنے والد محترم زمان گردیزی کو استفہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اور زمان گردیزی اپنی والدہ محترمہ کو دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہارون بیٹا، میں تمہیں ساری بات تفصیل سے بتاتا ہوں، لیکن تمہارا کام ہے اسے غور سے سننا اور گہرائی سے جانچنا، کیونکہ اگر تم گہرائی میں جا کر نہیں سوچو گے تو تم پر اپنی دادی، اپنی اماں اور اپنے خاندان کے احساسات نہیں سمجھ سکو گے جو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تھے۔ انہوں نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے بات شروع کرنے سے پہلے ذرا سی تمہید باندھی۔ جی میں سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، آپ بات شروع کریں، اس نے انہیں تسلی دلائی۔ تمہارے دادا سلطان گردیزی کے صرف 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، رحمان گردیزی، زمان گردیزی اور رابعہ گردیزی۔ تمہارے دادا جان سلطان گردیزی کی جاگیرداری اور سیاست کے میدان میں اپنی ایک ساکھ تھی۔ ان کا اپنے گاؤں میں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقے میں بھی اچھا خاصا دبدبا اور ایک نام تھا۔ وہ بہت باصول، انصاف پسند اور نرم دل انسان تھے، اپنی زندگی اور جاگیرداری سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ انہوں نے جدی پشتی حکمرانی کی بنا پر کبھی کوئی محرومی یا کمی نہیں دیکھی تھی، یہی چیز ان کو مطمئن رکھتی تھی، لیکن ان کا یہ اطمینان اور خوشی اس وقت رخصت ہو گئے تھے جب انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں کی تھیں، لیکن شادیوں کے 7 سال بعد بھی انہیں اپنی حویلی میں کسی بچے کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ دونوں بیٹے اولاد کے لیے ترس رہے تھے۔ رحمان گردیزی کے ہاں تو 7 سال سے کوئی بچہ ہوا ہی نہیں تھا، جبکہ زمان گردیزی کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ 4-5 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ پائے تھے، اور بچوں کی پیدائش کے 4-5 دن بعد کا یہ صدمہ پوری حویلی کو توڑ کے رکھ دیتا تھا۔ سلطان گردیزی اور بڑی اماں دادی کے دلوں میں پوتے پوتی کی خواہش کسی روگ کی طرح چمٹی ہوئی تھی، جو ان کو اندر ہی اندر ترسا رہا تھا۔ لاشعوری طور پر حویلی کے ہر فرد کو بچے کی خواہش نے گھیر رکھا تھا۔ رحمان گردیزی اور ان کی بیوی بھی بچے کی آواز کو ترس رہے تھے۔ سلطان گردیزی اور بڑی اماں کو بھی ایک وارث کی شدید خواہش تھی، ارمان تھا، اور زمان گردیزی بھی اپنے ہونے والے بچوں کے لیے زندگی کی دعا مانگ رہے تھے، اور یہ دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ اللہ نے ایک بار پھر امید کی کرن دکھائی، اور سبھی اپنی اپنی جگہ منتیں اور مرادیں ماننے لگے تھے کہ اللہ ہمارے ہونے والے بچے کو زندگی دے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ سلطان گردیزی نے اپنی چھوٹی بہو کی پریگنینسی کی خبر سنتے ہی صدقہ اور خیرات دینا شروع کر دیا تھا۔ کہیں پیروں فقیروں کے پاس گئے، کہیں دیگیں چڑھائی تھیں اور کتنے ہی نوافل پڑھ ڈالے تھے۔ اسی طرح بڑی اماں بھی کبھی کسی ملنگ سے دعا کروانے چلی جاتی، کبھی کسی مزار پر دھاگے سے گرہ باندھ آتی، اور یہی سب کرتے کرتے ایک روز وہ اپنے مرشد سائیں پیر فرید حسین کے پاس جا پہنچی، جو اپنے باپ دادا کے سجادہ نشین تھے اور مزار کے ساتھ بنے حجرے میں تشریف فرما ہوتے تھے، جہاں وہ اپنے مریدوں کے دکھ پریشانیاں اور مسئلے مسائل سنتے تھے اور ان کا حل بتاتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے اور ضرورت پڑنے پر تعویذ وغیرہ بھی لکھ دیتے تھے۔ بڑی اماں اتنے لوگوں کے رش میں اپنی باری کا انتظار کرتی رہیں، اور جب باری آئی، جب شام ہو چکی تھی، بڑی اماں نے کچھ کہنے کے لیے اپنی مشکل، اپنا دکھ بتانے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا تھا۔ بی بی، تمہیں ایک وارث چاہیے جو تمہاری نسل کو آگے بڑھا سکے اور تمہارے خاندان کا نام سلامت رکھے۔ انہوں نے بڑی اماں کے دل کی بات کہہ ڈالی تھی، اور بڑی اماں کا عقیدہ پل میں پختہ ہو گیا تھا۔ وہ ان کے سامنے شدت سے رو پڑی تھی۔ مرشد سائیں، میری جھولی بھر دو، میری مراد اللہ سے پوری کروا دو، میں آپ کی نوکر، آپ کی غلام بن جاؤں گی، آپ جو کہیں گے وہی کروں گی، آپ جو کہیں گے وہی چڑھاوا دوں گی۔ پیر فرید حسین کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسکرائے تھے۔ ان کے پرشفقت نورانی چہرے پہ نرم سا تاثر تھا، کیونکہ انہیں پتا کہ کبھی کبھی چڑھاوا دینا اور منتیں مرادیں پوری کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نیک بی بی، سوچ لو ایک بار۔ انہوں نے بڑی اماں کو سوچنے کی مہلت دی، مگر وہ مہلت لینے پہ راضی نہیں تھی۔ آپ جو بھی کہہ دیں گے، میرے لیے وہ پتھر پہ لکیر ہوگا، آپ سے منکر نہیں ہو سکتی۔ بڑی اماں نے فیصلہ کر لیا تھا۔
नेक बीबी, हमारे ख़ानदान में सदियों से ये रस्म चली आ रही है कि हर लड़ी, हर नस्ल में सबसे बड़ा बेटा सजादा नशीन होता है और इस सजादा नशीन की बेटी को सदका किया जाता है। इसके बाप और भाइयों का सदका यानी इसका निकाह करके एक दिन के लिए दुल्हन बनाकर रुखसत किया जाता है और फिर शादी के दूसरे रोज़ ही इसे वापस घर ले आते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। फिर वो अपनी तमाम उम्र इबादत में गुजार देती है, दुनियावी कामों से दूर हट जाती है और दीनी कामों को अपना लेती है। इसके शोहर का, इसके बाप दादा और बहन भाइयों का इस पे कोई हक और इख्तियार नहीं रहता। वो बस अल्लाह की राह पे लग जाती है क्योंकि वो सदका करती जाती है। हमारी लड़ी में हमारी बेटी सदका की गई थी जो आज तक इबादत में वक्त गुजार रही है और अब हमारे बेटों में से मेराज हुसैन की बेटी सदका की जाएगी जिसका निकाह तुम्हारे ख़ानदान में होगा और निकाह के लिए दूसरे रोज़ ही हमारी बेटी हमारे घर आ जाएगी। उन्होंने तफसील से बताया था। हमारे ख़ानदान में किसके साथ मुश्किल आई? बड़ी अम्मा को हैरत हुई थी। तुम्हारे होने वाले पोते के साथ, और तुम ये मन्नत मान चुकी हो, तुम ये चढ़ावा ज़रूर दोगी। हमारे बड़े बेटे की साहबजादी का निकाह तुम्हारे पोते से होगा। हाँ, एक बात और बता दें कि तुम्हारा पोता कभी हमारी साहबजादी को तलाक नहीं देगा और ना ही कभी इस पर अपना हक जताएगा, ना शादी के दिन, ना बाकी सारी ज़िंदगी। अलबत्ता वो चाहे जहाँ चाहे अपनी दूसरी शादी कर सकता है। हमारी तरफ से कोई पाबंदी या रुकावट नहीं होगी। बस तुम्हारा चढ़ावा यही होगा कि हमारी बेटी, हमारी इज़्ज़त तुम्हारे पोते से मंसूब रहेगी और सारी ज़िंदगी आप लोगों से कुछ तलब नहीं किया जाएगा। वो बड़ी अम्मा को इस रस्म की हर ऊँच नीच से आगाह कर रहे थे। बड़ी अम्मा जो मुतफक्किर लग रही थी, इनकी बातों से कुछ देर सुकून सी हो गई थी। लेकिन मुर्शिद साईं, ये रस्म, ये मन्नत कब पूरी करनी होगी? वो आहिस्तगी से बोली। जब हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे। अभी तो ना तुम्हारा पोता पैदा हुआ है और ना ही हमारे बेटे की साहबजादी, लेकिन हमारी इस रस्म में ये रिश्ता पैदा होने से पहले ही तय किए जाता है, जो आज हमने कर दिया है। बस दुआए खैर करनी है। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की और बड़ी अम्मा वापस घर आ गई। और फिर इस मन्नत के बाद तुम पैदा हुए और तुम्हारे पैदा होने के बाद लाला साईं रहमान गर्देजी के यहाँ भी 2 बेटियाँ पैदा हुई। तुम जान सकते हो कि इसके बाद बड़ी अम्मा का या फिर हमारे ख़ानदान का मुर्शिद साईं पर कितना पक्का अकीदा हो चुका था और वो मन्नत पूरी करना भी हमारे लिए लाजिम हो गया था। लेकिन इनके बेटे सैयद मेराज हुसैन के 3 साहबजादे थे, इसलिए 8 साल तक रस्म डामाडोल रही थी। मगर जब तुम 8 साल के हुए तो इनके यहाँ साहबजादी की पैदाइश हुई और तुम्हारे लिए मानी जाने वाली मन्नत पक्की हो गई थी। लिहाजा रस्म के मुताबिक सैयद मेराज हुसैन और पीर फरीद हुसैन चाहते थे कि शादी जब लड़की 20 साल की हो जाए तो बेटा तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम हमारी और अपनी बड़ी अम्मा की मजबूरी समझ सको, क्योंकि वो लोग चंद दिनों तक निकाह करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। समान गर्देसी ने तफसील से सारी बात बताने के बाद पलटकर हारून को देखा, जो उनकी तफसीली बात सुनने के बाद शिद्दत से बैठा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे इन सब से। हारून, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं बेटा। उन्होंने अब दोबारा से मुतवज्जा किया था। बड़ी अम्मा मसहरी पर बैठी तस्बीह के दाने गिरा रही थी और दुआ मांग रही थी कि इनका पोता इनकी लाज रख ले। हारून, ज़मान गर्देजी ने करीब आकर इसके कंधे पर हाथ रखा था। वो एकदम इस शौक से बाहर आया था। आई एम सॉरी अब्बा साईं, मैं आपकी ऐसी कोई मन्नत नहीं पूरी कर सकता। मैं ये निकाह नहीं करूँगा। एक लड़की को अपनी इज़्ज़त, अपनी ग़ैरत बनाने के बाद इसे आज़ाद नहीं छोड़ सकता। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया था। इसका अंदाज़ दो टोक था, बेलचक और बेमुरव्वत। ये क्या कह रहे हो बेटा? मैं ठीक कह रहा हूँ। आप लोग इन्हें इनकार कर दें। वो इस काम के लिए किसी और को ढूँढ लें। मेरी तरफ से इनकार है। वो कहते हुए कमरे से निकल गया था। बड़ी अम्मा का पूरा चेहरा परेशानी से पीला पड़ गया था। ज़मान गर्देज़ी और इनकी बीवी भी चुप रह गए थे। सुबह होते ही वो शहर के लिए रवाना हो गया था और ज़मान गर्देज़ी इससे दोबारा बात करने का सोचते रह गए थे। हारून से बात की आप लोगों ने? क्या कहा है वो? वो सुबह नाश्ते की मेज़ पर लाला साईं ने पहला सवाल यही किया था। हाँ की थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो बेटे की ज़िद को जानते थे, तभी आहिस्तगी से बोले थे। अम्मा साईं क्या कहती हैं? उन्होंने दूसरी पार्टी का पूछा। लहजा कुछ तजस्सुम था। शायद उन्हें पहले से ही पता था कि हारून नहीं मानेगा। वो रात से बहुत परेशान है, अपने आप को बुरा भला कह रही हैं, अपने मरने की दुआएं कर रही हैं कि वो अपनी मुर्शिद साईं को क्या मुँह दिखाएंगी। ज़मान गर्देज़ी यूँ बात कर रहे थे जैसे बड़ी अम्मा के वही मुजरिम हों। हमें तो हारून के बचपन से ही अंदाज़ा हो गया था कि वो ये शादी नहीं करेगा। औलाद के तौर तरीके और तेवर देखकर ही इसके मिजाज का पता चल जाता है। ज़मान गर्देज़ी बोले, बेटा तो वो तुम्हारा है। ज़मान गर्देज़ी, बेटा तो वो तुम्हारा है, लेकिन समझते उसे हम हैं। तुम फ़िक्र ना करो, वो मान जाएगा, हम इसे समझाएंगे। उन्होंने इत्मीनान से चाय का कप उठाते हुए तसल्ली दी थी। मुझे बस अम्मा साईं की तरफ से फ़िक्र हो रही थी कि वो क्या सोच रही होंगी। ये मन्नत भी तो उन्होंने हमारे लिए ही मानी थी ना। अरे ठीक है, बस तुम परेशान ना हो। अम्मा साईं को भी तसल्ली दो और मुर्शिद साईं से कह दो हम इस शादी के लिए तैयार हैं और वो दिन बता दें ताकि हम दुल्हन के लिए कुछ सामान खरीद लें। मगर लाला साईं, बस ज़मान गर्देज़ी, हमने कह जो दिया है हारून को हम संभाल लेंगे। वो कंधा थपक कर वहाँ से चले गए थे। उन्होंने अपने मज़ारों के साथ आज ज़मीनों पर जाना था जहाँ मज्जी चावल की फसल होने का काम हो रहा था। ज़मान गर्देज़ी लाला साईं को देखते रह गए और ये सच था कि दोनों ताया भतीजे में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों के ख़यालात मिलते थे और दोनों की गपशप हमेशा दोस्तों की तरह होती थी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? रहमान गर्देज़ी ने इसके ऑफिस रूम के दरवाजे पर दस्तक देकर इजाज़त तलब की थी और हारून गर्देज़ी इस वक्त एक बहुत अहम फ़ाइल पर काफ़ी मसरूफ़ से अंदाज़ में काम कर रहा था। इनकी आवाज़ पर एकदम एहतराम से खड़ा हो गया था। चचा साईं अंदर आएँ, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? प्लीज़ मुझे शर्मिंदा ना करें। वो अपनी फ़ाइल छोड़कर सीट से उठाया था और करीब आकर रहमान गर्देज़ी को आगे बढ़ने को कहा।
रिश्ते और उम्र के लिहाज से वो इसकी ताया थे, लेकिन वो हमेशा से इनको चचा साईं कहकर बुलाता था। बैठे चचा साईं, आज मुझसे मिलने का ख्याल कैसे आ गया? वो सोफ़े की सिमत इशारा करते हुए काफ़ी दिलचस्पी से पूछ रहा था। हारून करदेज़ी, ना तुम मासूम बच्चे हो और ना हम। 1 माह से घर पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, मगर तुम रोज़ आज और कल पे टालने जा रहे थे। हमने तो आखिर आना ही था, क्योंकि तुमसे काम हमें था, तुम्हें तो नहीं। वो हारून पर चोट करते हुए बोले थे। वो सच में शर्मिंदा होकर रह गया था। आई एम सॉरी चचा साईं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। दरअसल यहाँ काम ही कुछ इतना ज़्यादा था कि गाँव जाने का टाइम ही नहीं मिला। इंशाल्लाह 4-5 रोज़ तक चक्कर लगाऊंगा। इसने वज़ाहत पेश की थी। अब तुम्हें चक्कर लगाने की क्या ज़रूरत है? अब हम जो यहाँ आ गए हैं। वो दिलचस्पी से बोले थे। वे ठीक कह रहे हैं आप, और सुनाएं, बड़ी अम्मा और बाकी सब कैसे हैं? राबिया फूफो से मुलाकात हुई आपकी? इसने सबकी खैरियत पूछी। हालांकि रोज़ हवेली फ़ोन करके गाँवों की खैर खबर लेता रहा था। सबसे मुलाकात हो जाएगी, पहले तुमसे तो हो जाए। और बड़ी अम्मा का तो तुम्हें पता है, उन्हें आजकल क्या रोग लगा हुआ है। रहमान करदेसी की ये बहुत अच्छी आदत थी कि वो बड़ी से बड़ी बात बहुत ही नरमी से कह जाते थे और मनवा भी लेते थे। और इन्हें अपना ये इकलौता भतीजा अपने बेटे की तरह अजीज़ था। वो इसे एक बाप की तरह ही चाहते थे। हारून बड़ी अम्मा के मुतालिक सुनकर चुप सा हो गया था, क्योंकि वो इनके लिए कुछ नहीं कर सकता था। इनकी मन्नत बहुत कड़ी मन्नत थी। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं चचा साईं, कुछ तो सोचा है तुमने। हाँ, मगर जो मैंने सोचा है वो मैं बयान नहीं कर सकता, इसने एतराफ़ किया था। तुम पीर फरीद हुसैन की इस रस्म के तारीख पहलू पे गौर कर रहे हो, इसे रोशन करने का सोच रहे हो, तो बयान क्यों नहीं कर सकते? रहमान करदेसी की बात पे हारून एकदम करंट खा के इनकी सिमत देखा था। हारून ने एकदम करंट खाकर इनकी सिमत देखा था। इनका चेहरा वहीं कुछ बयान कर रहा था जो हारून दिल में सोच रहा था। चचा साईं, आप भी वही सोचते हैं जो मैं? वो बेयकीन सा होने लगा था। तुम बाकी सब छोड़ो, ये बताओ कि अपनी बड़ी अम्मा की मन्नत पूरी करोगे या नहीं? हम आज इसलिए आए हैं, आज तुम्हें फैसला करना होगा। वो अपने तासुरात गायब करते हुए गोया हुए थे। हारून ने 5 मिनट सोचा, हर पहलू पर एक बार फिर गौर किया और रजामंदी दे दी थी। ठीक है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, और जो मैं कहूँगा वो आपको भी करना होगा। इसने हामी भर ली और रहमान करदेसी मुस्कुरा दिए थे। आज शहरबानों की मेहंदी और तेल की रस्म थी। वो लोग ये एक दिन की शादी भी तमाम रस्मों और पूरे एहतमाम के साथ करते थे। अपने तौर पर वो बेटी का हर हक अदा करते थे, हालांकि बल्कि इसी तरह जिस तरह कुर्बानी के जानवर का हक अदा किया जाता है, और फिर कुर्बानी के दिन धूमधाम से इसे ज़िबा करके कुर्बान कर दिया जाता था। और आज इस कुर्बानी के लिए शहरबानों को तैयार किया जा रहा था। बस फ़र्क ये था कि वो जानवरों की कुर्बानी होती थी, और वो भी अल्लाह की राह में और अल्लाह की रज़ा पर होती थी, जबकि ये इंसानों की कुर्बानी थी, और वो भी सिर्फ बेटियों की, जो बाप और भाई के लिए कुर्बान हो जाती थी। हर नस्ल में एक बेटी इस रस्म की भेंट चढ़ा दी जाती थी। और अब बारी शहरबानों की थी, जो 3 भाइयों से छोटी और इकलौती बहन थी। लेकिन फिर भी इसकी माँ इसे इस रस्म से नहीं बचा सकती थी, क्योंकि सदियों से और कई नस्लों से चली आने वाली ये रस्म तो आखिर निभाना ही थी। हालांकि इनका अपनी नाजुक फूलों की बेटी के लिए बहुत दिल तड़पता था कि वो जीते जी दुनिया से कट के रह जाएगी। यही सोचे और भी दुख आजकल इनको निढाल किए रखता था। वो बहुत चुप चुप सी रहती थी। ताई अम्मा, आप यहाँ बैठी हैं, चलें, आपको सब नीचे बुला रहे हैं। शहरबानों को मेहंदी लगने वाली है। मरियम ने इनके कमरे में आते ही पैगाम दिया था, लेकिन वो इसी तरह बैठी रहीं। ताई अम्मा, चलें ना, सबको देर हो रही है। मरियम ने मज़ीद कहते हुए इनका हाथ भी पकड़ लिया था, और वो गुमसुम अफसरदा ही उठकर इसके साथ आ गईं। जहाँ नाज़ुक गुदास और गुलाबों की तरह शहरबानो ज़र्द लिबास में अपनी तमाम तर पाकीज़गी और सादगी के साथ चेहरा झुकाए बैठी थी, और सब भी इसकी माँ के इंतज़ार में बैठे थे, क्योंकि बेटी को तेल और मेहंदी लगाने का आगाज़ इन्होंने ही करना था। आएँ भरजाई, शहरबानो को मेहंदी लगाएँ, इतना टाइम हो रहा है। इनकी देवरानी सैयद सिराज हुसैन की बीवी ने इन्हें आगे बढ़ने का कहा, लेकिन इनके दिल पर क्या गुजर रही थी, कोई कैसे जान सकता था। इनका बस चलता तो वो ये रस्म हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देती, मगर बस चलता जब तक उन्होंने आगे बढ़कर खड़े-खड़े बेटी को मेहंदी और तेल लगाया और पलटकर वापस चली गईं। बाद में क्या कुछ होता रहा, उन्हें कोई खबर नहीं थी। वो सर दर्द का कहकर अपने कमरे में बंद हो गईं। शहरबानो, तुम्हें कोई दुःख तो नहीं अंदर से? क्या इस रस्म पर उदास हो? मोमना फूफो की बेटी फरवा ने काफ़ी संजीदगी से सवाल किया था। फरवा बीबी, हमारी शहरबानो तो अल्लाह की गाय है, इसे भला कोई दुःख या उदासी क्यों होने लगी? वो सबकी खुशी में खुश रहती है। हाँ, दुःख या उदासी तो हमें हुई थी। अगर इसके बजाय हमारा निकाह हो रहा होता, सिर्फ नाम नेहाद निकाह, ज़ोहरा ने जलते हुए तंज़ किया था। इसे शहरबानो की चुप रहने की आदत पर काफ़ी गुस्सा आता था। वो चाहती थी कि शहरबानो अपने हक़ में आवाज़ उठाए। वो अनपढ़ लड़कियों की तरह इस फरसुदा रस्म की भेंट ना चढ़े, मगर शहरबानो इस किस्म की गुस्ताखी या सरकशी की मरतब नहीं हो सकती थी। इसने कभी भी ज़ोहरा की गुफ्तगू को पैर नहीं लिया था। काश कि ये सदक़े की रस्म तुम पर आई होती। मरियम ने ज़ोहरा को छेड़ा था। कसम से यार, मैं भी यही सोचती हूँ कि काश शहरबानो की जगह मैं होती और फिर सबको बताती कि एक इंसान को सदका कैसे किया जाता है। अकल ठिकाने लगा देती सबकी। ज़ोहरा ने बेबसी से मुट्ठी भींच कर कहा था, और इसके अंदाज़ पर सब हँस पड़ी थी, क्योंकि शहरबानो अभी भी खामोश बैठी थी। हालांकि इसकी बड़ी पप्पो की बेटियां फरवा और इकरा इसके हाथों पर मेहंदी लगाने और मजाक करने में मशगूल थी। फिर भी इसका ध्यान न जाने कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ था। फरवा, यहाँ हथेली पे शहरबानो के शोहर का नाम भी लिख दो। ज़ोहरा ने फिर मदाखलत की। क्या नाम है इनका? फरवा ने पूछा।
हारून करती थी। शहरबानो ने एकदम परवा के हाथ से अपनी हथेली खींच ली थी। मुबादा वो सचमुच ही इसका नाम ना लिख डाले। क्यों हाथ क्यों खींच लिया शहरबानो? इसका नाम लिखने का कहा है ना, जिसके नाम तुम अपनी पूरी ज़िंदगी लिखने जा रही हो। प्लीज़ आप ही मुझे डिस्टर्ब ना करें। मेरे साथ जो हो रहा है होने दें। अगर हमारे साथ अच्छा नहीं किया जा रहा तो इसका ख़्याल हमारे माँ-बाप और बड़ों को करना चाहिए, हमें नहीं। क्योंकि जिनको बिन कहे कोई एहसास नहीं होता, उन्हें हमारे कहने पे भी कोई एहसास नहीं होगा। मुझे मेरे बाबा और भाइयों ने हमेशा बहुत प्यार दिया है, लाडला बना के रखा है, मेरी हर चीज़ का ख़्याल रखते हैं। तो अगर आज मैं इनके लिए कुर्बान हो जाऊँगी तो कोई नुकसान की बात नहीं होगी, बल्कि मेरे लिए तो फ़ख्र है कि मैं अपने भाइयों और बाबा का सदका बन रही हूँ। इनके नाम पर से वारी जा रही हूँ। इतनी चाहतों के बदले ये काम तो कोई मायने नहीं रखता। इसने कंधे झुकाते हुए कहा और ज़ोहरा को समझाना चाहा था, जो हमेशा ही शहरबानो की बात नहीं समझती थी। और फिर निकाह का दिन भी आ गया। शादी का जोड़ा पूरे एहतमाम के साथ इसके ससुराल से आया था। बड़ी अम्मा ने फूफों से कहकर हर चीज़ बहुत शौक और बड़े चाव के साथ खरीदी थी। अपनी तरफ से हर शौक पूरा किया था। राबिया गर्देज़ी भी अपने शौहर और बच्चों के साथ शरीक हुई थी। हवेली के भी फ़र्द इस रस्म में शामिल हुए थे। वो बहुत से लोग इस शादी में शरीक हुए थे और सभी लोग इस शादी की नौयत को जानते थे कि ये इस एक रस्म के तहत रखी गई है, इसलिए माहौल भी कुछ रस्मी सा था। हारून ने बस एक जानने वालों को और 2-3 दोस्तों को ही इनवाइट किया हुआ था। मगरिब के बाद इनका निकाह हुआ, फिर खाना वगैरह खाया गया और 1-2 रस्म अदा की गई थी। तब जाकर रुखसती का वक़्त आया। बाकी सब तो शहरबानो के गले लगकर बहुत नॉर्मल से अंदाज़ में मिली थी कि कल सुबह शहरबानो को दोबारा घर जो आ जाना है। लेकिन शहरबानो की माँ बेटी को गले लगाकर बहुत शिद्दत से रोई थी, क्योंकि सिर्फ़ उन्हीं को तो एहसास था कि इनकी बेटी कुर्बान हो गई है। बेशक इसने कल सही सलामत वापस घर आ जाना था, लेकिन साथ ये दुःख भी तो था कि वो पूरी दुनिया से कट कर रह जाएगी। हारून की बड़ी अम्मा ने आगे बढ़कर इनको अलग किया और बहू को इशारा किया कि वो शहरबानो को गाड़ी में बिठाएं। मुर्शिद आई, अब हमें इजाज़त दें। बड़ी अम्मा ने एहतराम से कहा। अलबत्ता इनके लहजे में बेपनाह खुशी थी कि उन्होंने अपनी मन्नत पूरी कर ली है। इजाज़त है बड़ी अम्मा, हमारी अमानत आपके हवाले है। सैयद मिराज भी जवाबन काफ़ी अदब से बोले थे और इनकी बात पर हारून नज़रें फेर कर दूसरी सिमत देखने लगा, जहाँ इस वक्त तमाम सैयदजादियाँ खड़ी अपनी लाडली साहबजादी की रुखसती का मंजर देख रही थी। ना जाने क्यों ज़ोहरा, मरियम, फरवा और सकीना वगैरह ने हारून करदेज़ी को देखते ही इसकी शानदार पर्सनैलिटी को खूब सराहा था। ब्लैक थ्री-पीस सूट में बलूस अपने चचा साईं के हमरा खड़ा इस वक्त ना जाने क्या बात कर रहा था वो भी इसे देखती रह गई। यहाँ तक कि माँ जी ने भी अपने दामाद को दिल ही दिल में बेहद सराहा था। मगर क्या फ़ायदा इस सब का? थोड़ी देर बाद वो अपनी ब्लैक मर्सिडीज़ में बैठा और दुल्हन के साथ रवाना हो गया था। हारून, ये कहाँ जा रहे हो तुम? वो अपने कोट के बटन खोलकर उसे बाजू पर डालता सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, जब ज़ीनी आपा की आवाज़ ने अचानक इसके कदम रोक दिए थे। इसने सीढ़ियों पर खड़े-खड़े गर्दन मोड़कर ड्राइंग रूम के वसत में खड़ी ज़ीनी आपा को तज्जुब भरी नज़रों से देखा था। अपने बेडरूम में और कहाँ? इसने काफ़ी लापरवाही से जवाब दिया था। क्या बेडरूम में? मगर तुम भला बेडरूम में कैसे जा सकते हो? वहाँ तो वो कहते-कहते एकदम खामोश ही हो गईं और घबराहट इनके पूरे चेहरे से झलक रही थी, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि वो शहरबानो को हारून के बेडरूम में बिठाकर कितनी बड़ी गलती कर चुकी हैं। वहाँ कौन है? वो जानबूझकर अनजान बना था। शहरबानो, ज़ीनी आपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो हारून को कैसे हैंडल करें। कौन शहरबानो? इसने फिर सवाल किया था। वो जिसके साथ आज तुम्हारी शादी हुई है। ज़ीनी आपा को मजबूरन कहना पड़ा था, क्योंकि और कोई जवाब भी तो नहीं था और उन्हें क्या पता था कि वो जानबूझकर अनजान बन रहा है। जिसके साथ आज मेरी शादी हुई है, फिर वो तो मेरी बीवी हुई ना, मेरी मनकुआ। इसलिए आज से मेरा अपने बेडरूम में जाना कोई गलत बात तो नहीं है। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? वो पलटकर सीढ़ियाँ उतर आया था। लेकिन हारून, तुम नहीं जा सकते, इसका इख्तियार नहीं है। अजीब बात है ज़ीनी आपा, घर मेरा है, बेडरूम मेरा है, बीवी मेरी है और मुझे इख्तियार नहीं है। ये भला किस किताब में लिखा है? इसने काफ़ी खफगी और हैरानगी का इज़हार किया था। हारून, तुम जानते तो हो ये शादी एक रस्म अदा करने के लिए हुई है। ये वैसा रिश्ता नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तुम्हारा शहरबानो पर कोई हक नहीं है। वो अपने बाप दादा की रस्म के मुताबिक सख्ता की गई है। ज़ीनी आपा के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था हारून को समझाना, क्योंकि वो इनकी हर बात के जवाब में नुक्स निकाल रहा था और अपनी दलीलें दे रहा था। एक इंसान की कुर्बानी, एक इंसानी सदका तो अल्लाह ताला ने भी नहीं लिया, जो बड़ी अम्मा के मुर्शिद साईं ले रहे हैं। अगर ऐसा मुमकिन होता तो सबसे पहले इंसान की कुर्बानी की सूरत में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कुर्बान होते और फिर हर साल हर इंसान को अपने प्यारे अल्लाह की राह में कुर्बान करना पड़ते। कुछ सोचिए ज़ीनी आपा, पीर फरीद हुसैन की ख़ानदान की ये रस्म नहीं ज़ुल्म हो रहा है और मैं ये ज़ुल्म नहीं होने दूँगा। मैंने ये शादी इसलिए की है कि इनकी इस रस्म को मिटाया जा सके। सो प्लीज़ हेल्प मी। मैं अपने बेडरूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट, कल मुलाकात होगी। वो नरमी से कहता ज़ीनी आपा का कंधा थपक कर सीना चढ़ गया था। लेकिन ज़ीनी आपा का दिल नहीं मान रहा था। उन्होंने जाकर बड़ी अम्मा और चचा साईं ज़रमान गर्देज़ी के सरों पर बम फोड़ दिया था। बड़ी अम्मा ने तो दोहतर से अपने सीना पीट लिया था, जबकि ज़रमान गर्देज़ी और इनकी बीवी अपनी-अपनी जगह पर साकत से हो गए थे कि अब क्या होगा। अलबत्ता रहमान गर्देज़ी ने ज़रा कम ही नोटिस लिया था। हारून गर्देज़ी की ताज़ाद बहन ज़ीनी आपा से तकरीबन 1 घंटा पहले इससे बेडरूम में छोड़कर गई थी। लेकिन इसे नहीं पता था कि ये बेडरूम किसका है, इसलिए इस बेडरूम को थोड़ी देर के लिए अपनी आरामगाह समझकर दिन भर की अकड़ी हुई कमर को रिलैक्स करने की गर्ज से ज़रा-सी नींद दराज़ हो गई थी और ज़ीनी आपा का इंतज़ार करने लगी, जो इसे थोड़ी देर बाद आने का कहकर गई थी। लेकिन फिर आधा घंटा गुजरने के बाद भी नहीं आई थी। अब शहरबानो को अपने बनाव सिंगार से कोफ्त सी होने लगी थी। तभी वो ज़ीनी आपा का इंतज़ार करते-करते बेड से उठ खड़ी हुई थी। अभी वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि इसकी नज़र साइड टेबल पर रखी तस्वीर की सिमत उठ गई थी। इसने हारून गर्देज़ी को ठीक तरह से देखा तो नहीं था, मगर उत्सुकती के दौरान एक सरसरी सी नज़र तो इस पर पड़ी ही थी, इसलिए पहचानने में देर ना लगी कि ये तस्वीर हारून गर्देज़ी की है। वो इस खूबसूरत फ्रेम में हारून गर्देज़ी की मुतासिब पर्सनैलिटी को देखी गई और साथ ये भी एहसास हो गया कि ये कमरा हारून गर्देज़ी का ही है। वो शहरबानो को रुखसत कराकर हवेली ले जाने के बजाय अपने शहर वाले घर में लेकर आया था। अलबत्ता हवेली जाने के लिए इसके क्या इरादे थे, अभी कुछ पता नहीं था।
शहरबानो ने खड़े-खड़े पूरे कमरे का जायज़ा ले डाला था। इस दौरान वो चलती हुई कमरे के बीचों-बीच आ खड़ी हुई थी कि अचानक ही हल्की सी दस्तक के साथ दरवाज़ा भी खुल गया था। आने वाले के कदमों की आहट उभरी थी। शहरबानो ने घबराकर रुख मोड़ लिया था क्योंकि वो जान चुकी थी कि आने वाला मर्द है, औरत नहीं। तकरीबन 3 या 4 सेकंड के वक़्फ़े के बाद दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। हारून ने अपना कोट बेड पर डालते हुए अपनी नई नवेली अजनबी की दुल्हन को सलाम किया, जो इसकी सिमत पुश किए खड़ी थी। आप कौन? वो घबराई हुई बोली थी। जिससे आपकी सारी ज़िंदगी मंसूब हो चुकी है। वो सुकून से कहता अपनी घड़ी उतार कर टेबल पर रख रहा था। मगर आप यहाँ क्यों आई हैं? बेशक शहरबानो बहुत नाज़ुक और खामोश तबीयत थी, मगर ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ज़रा तुर्शी से बोली, अगर यही सवाल मैं आपसे करूँ तो? इसने अपना वॉलेट और मोबाइल निकाल कर वो भी साइड पे डाल दिए थे। शहरबानो इसके सवाल पर ठिठक गई थी, लेकिन फिर फ़ौरन ही संभल गई। इसे अपना दफ़ा करना था। मैं यहाँ मेहमान हूँ, वो मज़बूती से बोली थी। हालाँकि मैं आपको मालिक समझ रहा था क्योंकि ये घर आपका है, ये कमरा आपका है और सबसे बड़ी बात कि मैं भी आपका हूँ। फिर आप मेहमान कैसे हो गई? वो दिलचस्पी से कहता ऐन इसके सामने आ खड़ा हुआ था। जहाँ शहरबानो का रंग फ़क हुआ था, वहीं हारून गर्दिशी की निगाहें भी ऐसी दिलकशी पर अपनी साथ बुला बैठी थीं। कितने ही लम्हे हारून की नज़रों की नज़र हो गए थे, लेकिन शहरबानो की बदहवासी ने एकदम इसकी ये सहरज़दा सी कैफ़ियत खाक में मिला डाली थी। वो तेज़ी से पलटकर दरवाज़े की सिमत लपकी थी और इसी तेज़ी से हैंडल घुमाकर लॉक खोलने की नाकाम कोशिश की थी, क्योंकि वो लॉक के साथ-साथ बोल्ट भी चढ़ा आया था। ये भागने दौड़ने से बेहतर है कि आप एक बार आराम से बैठकर मेरी बात सुन लें, हारून ने करीब आते हुए कहा था। शहरबानो डरी सहमी खड़ी थी। इसके करीब आने से थोड़ी और दूर हट गई। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, आप यहाँ से चले जाएँ या मुझे जाने दें। शहरबानो ने बहुत सी हिम्मत जमा करके जवाब दिया था, वरना तो इसके हाथ-पैर काँप रहे थे। पूरा जिस्म ठंडा पड़ चुका था और धुतिया पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे थे। दिल की धड़कनें इस तरह धड़धड़ा रही थीं कि जैसे कोई दरवाज़े पर दस्तक दे रहा हो, और ये दस्तक ज़रा फ़ासले पर खड़े हारून गर्दिशी को भी बआसानी महसूस हो रही थी। आप मेरी बात नहीं सुनना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से चले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम दोनों ने अब यहाँ ही रहना है, आज भी, कल भी और आइंदा सारी ज़िंदगी भी। वो इसलिए कि मैं आपको एक दिन के लिए नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए अपनी हमसफ़र बनाकर लाया हूँ। अब मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और आप अच्छी हैं या बुरी, मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। बेशक मैं आपको जानता नहीं था, मैंने आपको देखा नहीं था और ना ही आपको चाहा था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जानने लगा, देखने लगा तो फिर चाहने भी लगूँगा। बहुत जल्द मुझे आपसे मोहब्बत भी हो जाएगी, जिसके आसार तो मुझे अभी से नज़र आने लगे हैं। मेरा दिल मोहब्बत में माइल सा लग रहा है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बड़ी दिलकशी से कहता अपने पूरे इस्तेकाक से शहरबानो का हाथ पकड़कर इसे अपने करीब कर चुका था। हारून गर्दिशी की कुर्बत की तपिश से शहरबानो का जिस्म ही नहीं, रूह भी जल उठी थी। वो इसे अपने मजबूत बाजू के हल्के में लेकर बेड तक ले आया था। प्लीज़ हारून, हारून ने जैसे ही इसकी चूड़ियाँ उतारी, वो जैसे होश में आ गई थी। ज्वेलरी तो आपने उतारनी ही है अभी या थोड़ी देर बाद, इसने बेनियाज़ी से कहा। आप मेरी इजाज़त और मेरी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वो एकदम अपना हाथ छुड़ाकर दूर हट गई थी। मैं बहुत चाहता था कि आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज ज़बरदस्ती किए बगैर गुज़ारा नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे हक़ में नज़र नहीं आ रही। वो बेड से खड़ा हो गया था। आप मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा आपके साथ हमेशा का रिश्ता नहीं है, वो सख्ती से बोली। इसने बड़ी हिम्मत से अपने आप को सँभाला था। अच्छा, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारा रिश्ता हमेशा का नहीं, लेकिन एक रात के लिए तो है ना? इसने शहरबानो का चेहरा ऊँचा करते हुए इसकी आँखों में देखकर काफ़ी ज़ुमाइनी लहज़े में कहा था। लेकिन मैं आपके साथ नहीं, शहरबानो ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि हारून ने इसके होठों पर हाथ रखकर खामोश करवा दिया। देखिए मोहतरमा शहरबानो, मैं इस वक्त आपकी सब बातें सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। मुझे आपकी कैफ़ियत का अंदाज़ा बखूबी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी की हक़ तलफ़ी नहीं करता और ना ही अपना हक़ तल्फ़ होने देता हूँ। लिहाज़ा आप ये भूल जाएँ कि मैं आपको बराए अमानत किसी का सदका या फिर शजरे ममनू समझ कर छोड़ दूँगा। आप पर मेरा पूरा हक़ है और मैं अपना हर हक़ वसूल करूँगा, चाहे ज़बरदस्ती करना पड़े, चाहे आपकी रज़ा से, क्योंकि आप हर तरह से मुझ पर हलाल हो चुकी हैं। वो बहुत ही नपे-तुले अल्फ़ाज़ में कहता शहरबानो को बहुत कुछ पागल करवा चुका था। वो अपनी जगह पे ज्यों की त्यों खड़ी रह गई और वो इसके होठों से हाथ हटाकर कपड़े चेंज करने चला गया था। वापस आया तो वो अभी तक वहीं की वहीं थी। इसने ज़ीरो पावर का बल्ब जलाकर बेडरूम की लाइट ऑफ कर डाली थी और शहरबानो का हाथ थाम कर अपने पास ले आया था। आई एम सॉरी शहरबानो, मैं इस तरह कुछ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस तरह एक परिंदे को अपने पास रखने के लिए इसके पर काटना ज़रूरी होता है, इसी तरह तुम्हें अपने साथ रखने के लिए भी ये सब बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें सरतापा अपनी साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएँ। हारून इसकी सारी ज्वेलरी उतार चुका था और शहरबानो के आंसू बेख्तियार हो गए थे। इसने हर मुमकिन तरीके से हारून को बाज़ रखने की कोशिश की थी। कितनी बार टूटे-फूटे से बेरहम अल्फ़ाज़ में इसे रोकना चाहा था, मगर वो जो ठान चुका था इससे बाज़ कैसे आ जाता। शहरबानो की सिसकियाँ इसके मज़बूत कशादा सीने में दब के रह गई थी और वो कुछ भी ना कर सकी थी इसके मज़बूत गिरफ्त के सामने। वो तो अपनी मनमानी कर चुका था, लेकिन सुबह पूरी हवेली में सिफ़े मातम बिछी हुई थी। बड़ी अम्मा का बीपी हाई हो चुका था, ज़मान गर्देज़ी गुस्से की हालत में थे, जबकि अम्मा साइंसी नहीं आ पा, राबिया, पप्पो और ताई अम्मा चुप-चुप और खफ़ा-खफ़ा सी दिखाई दे रही थी।
कि आज नाश्ता नहीं मिलेगा। इसने ज़ीनी आपा को देखकर कहा। शायद वो हारून से कुछ कहती, लेकिन अब्बासाई रहमान गर्देज़ी के इशारे पर खामोशी से हारून के लिए नाश्ता लेने चली गई। कैसी तबीयत है साहबज़ादे? रहमान गर्देज़ी ने अखबार फैलाते हुए संजीदगी से सवाल किया था। आपकी दुआएं हैं चचा साईं। वो कुर्सी घसीटकर इनके मुकाबिल बैठ गया था। और हमारी बहू कैसी है? बहुत अच्छी है। इसने शरारत भरे अंदाज में कहकर अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश की थी, लेकिन चचा साईं इसकी ये शरारत पर सरशारी भाप चुके थे। अब क्या इरादे हैं? मैं इसे ज़ीनी आपा और ताई अम्मा के साथ गाँव भेज रहा हूँ। ज़ीनी आपा नाश्ता रख के गई तो इसने अपनी बात शुरू की। और तुम खुद, मैं बाद में चला जाऊँगा। वो नाश्ते के दौरान बातें भी कर रहे थे। मुर्शिद साईं से क्या कहोगे? थोड़ी देर तक तो वो लोग शहरबानों को लेने के लिए आते होंगे। बस आप मेरे हक में दुआ करें, मैं सब सँभाल लूँगा। दोनों चचा भतीजे ही बहुत रिलैक्स थे। जैसे इन्हें किसी की भी परवाह नहीं थी। ठीक है, फिर तुम इन लोगों को भेजने की तैयारी करो। हम जब तक अम्मा साई की खैरियत मालूम करते हैं। वो अखबार समेट कर उठ खड़े हुए थे। इतने में हारून भी नाश्ता कर चुका था। ज़ीनी आपा इसने ड्राइंग रूम की सिमट जाती ज़ीनी आपा को आवाज़ दी, जो उम्र में हारून से पूरा 1 साल छोटी थी। लेकिन हारून और बाकी कज़न इनके सुगड़ापे, बर्दबारी और मिजाज की वजह से उन्हें ज़ीनी आपा कहते थे, वरना सबसे बड़ा हारून ही था। जी फरमाइए, वो खफगी का इज़हार कर रही थी। अगर आपको ज़हमत ना हो तो मोहतरमा शहरबानो को भी नाश्ता करवा दीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल में उन्होंने रात से कुछ नहीं खाया। वो बड़े सुकून से कहता नैपकिन से हाथ पोंछकर खड़ा हो गया था, और ज़ीनी आपा को एकदम शहरबानो का ख्याल आते ही अपनी कोताही का दोबारा से एहसास हुआ था। एक गलती उन्होंने रात को की थी, इसे हारून के बेडरूम में छोड़कर, और एक गलती अभी-अभी की थी, सुबह से इसकी कोई खैर खबर ही ना ली थी। हारून से खफगी का इज़हार करते-करते वो शहरबानो को ही बोल बैठी थी, जो इसके घर में बिल्कुल अनजान थी, नासमझ और अकेली थी। हाय मैं मर जावां! वो अपने सर पर हाथ मारती फ़ौरन सीढ़ियों की सिमत भागी थी, और हारून इनकी ये बौखलाहट देखता रह गया था। ज़ीनी आपा अधखुले दरवाजे को धकेलती हुई उजलत में अंदर आई थीं। शहरबानो, शहरबानो तुम ठीक तो हो? उन्होंने शहरबानो को किसी बुत की तरह बैकग्राउंड से टेक लगाए हुए देखा तो मज़ीद घबरा गईं। शहरबानो बोलो ना, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है? ज़ीनी आपा ने इसके करीब बैठकर इसका चेहरा थपथपाया तो इसकी सोच की महवत टूट गई, और वो अगले ही पल ज़ीनी आपा के गले लगकर फूट-फूट कर रो पड़ी थी। शहरबानो अपने आप को सँभालो, तुम्हारी किस्मत में हारून का साथ शायद इसी तरह लिखा था, वरना तुम्हारी शादी कहीं और भी तो हो सकती थी। वो शहरबानो को समझाने की कोशिश करने लगी। हमारे साथ धोखा हुआ है, फराड किया है आपके घरवालों ने और आपके भाई ने। वो रोते-रोते उनसे अलग हो गई थी। तुम शायद यकीन नहीं करोगी शहरबानो, घरवालों का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये फैसला सरासर हारून का अपना फैसला था। बड़ी अम्मा, चचा साईं और चिची अम्मा को तो पता भी नहीं था। वो तो रात को मैंने जाकर बताया कि हारून अपना इरादा, अपनी नीयत बदल चुका है, वरना कल तक तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। बड़ी अम्मा के फैसले पर राज़ी था। अचानक पता नहीं कैसे और क्यों ये सब सोच लिया। ज़ीनी आपा ने सबकी तरफ से सफाई पेश की थी। बहुत बुरा हुआ है ये सब। अब्बा साईं और चचा साईं कभी माफ़ नहीं करेंगे आप लोगों को। वो रोते हुए बोली थी। ज़ीनी आपा जिज़-बिज़ हुईं। अस्सलाम वालेकुम। अचानक दरवाज़े पर दस्तक दे के बाद जानी-पहचानी सी आवाज़ उभरी थी। ज़ोहरा आपी, शहरबानो बेताबी से पुकारी और बेड से उठकर इनके गले लग गई। ज़ोहरा के पीछे चच्ची बेगम भी थी, ज़ोहरा की वालदा सैयद सिराज हुसैन की बीवी। आराम से शहरबानो, आराम से। इस तरह पागल क्यों हो रही हो? अभी रात को ही तो मिले थे हम। ज़ोहरा ने इसे मुस्कुरा के अपने से अलग किया था, लेकिन इसके खुले स्याह घने नम बाल, धुला-धुलाया सा सिरापा, सुर्ख रुई-रुई सी आँखें और इसके जिस्म से उठती किसी और जिस्म की महक ने चौंका के रख दिया था। ज़ीनी आपा इन लोगों से कुछ भी कहे बगैर बाहर निकल गई थी। शहरबानो, ये सब ज़ोहरा का इशारा इसके सरापे इसकी हालत की तरफ था। हारून गर्दिज़ी ने धोखा किया है हमारे साथ। आपी, इसने मुझे दागदार कर डाला है। वो बिलख-बिलख कर रोती सब बता रही थी, और चची बेगम धक से रह गईं। अलबत्ता ज़ोहरा ने दिल ही दिल में एक नारा लगाया था, याहू! इसका जी चाहा वो हारून गर्दीसी का गद्दा थपक कर इससे इस कारनामे पे शाबाशी दे और फूलों का हार पहनाए। जो रस्म आज तक बेज़ुबान जानवरों की तरह इनका हर मुरीद निभाता आया था, वो रस्म हारून गर्दीसी ने अपनी मर्दानगी का मुज़ाहरा करते हुए एक रात में तोड़ डाली थी। ज़ोहरा बहुत खुश हुई थी। वो अब बार-बार शहरबानो को शरारती नज़रों से देखकर परख रही थी, छेड़ रही थी, जबकि चची बेगम मामले की संगीनी का सोचकर ही काँप गई थी। इनके साथ शहरबानो को लेने के लिए सैयद सिराज हुसैन आए हुए थे। ये क्या बकवास है? वो एकदम मुश्तिल होकर अपनी जगह से खड़े हुए थे। ये बकवास नहीं, मेरा हक़ है मुर्शिद साईं। हर मियाँ बीवी को एक साथ रहने का हक़ अल्लाह ताला ने अ, खुद दिया है। आप भला कैसे रोक सकते हैं? आप भी तो अपनी बीवी के साथ रहते हैं। मैंने अगर ये बात कर ली तो क्या गलत किया है? हर मर्द अपनी बीवी को, अपनी इज़्ज़त को अपने पास रखना चाहता है, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि मेरी बीवी मेरे घर में मेरे साथ रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। हारून अपने फैसले पर जम चुका था। सैयद सिराज हुसैन का ग़ज़ब से बुरा हाल होने लगा। हमने ये शादी सिर्फ़ एक रस्म के तहत की थी, लेकिन मैंने ये शादी उम्र भर का साथ निभाने के लिए की थी। मैं आपकी साहबज़ादी भतीजी को शरई बीवी मान चुका हूँ। इसने उन्हें जैसे कुछ बात करवाना चाहा। हारून गर्दिज़ी, तुम नहीं जानते कि हमारी रस्में हमारे लिए क्या हैं। वो दाँत पीस कर बोले थे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपकी रस्में आपके लिए क्या हैं, जो सिर्फ़ बेटियों से शुरू होकर बेटियों पर ही ख़त्म हो जाती हैं। कभी इनको कारी कर दिया जाता है, कभी कुरान से निकाह करके कोने में डाल दिया जाता है, और कभी नाम-नेहात सदक़े का ढोंग रचाकर जीते जागते मार दिया जाता है। मुझे सिर्फ़ इतना बता दें मुर्शिद साईं, कि आपकी नस्ल एक लड़ी में भी किसी बेटे को कारी किया गया है, किसी बेटे का सदका दिया गया है? इस तरह ये सब रस्में आपकी खुद साख्ता रस्में हैं, और सिर्फ़ दुनिया की नज़र में मुनफ़रिद बनने के लिए है, अपने मुरीदों को मुतासिर करने के लिए। जभी तो आप जिस बेटी को सदका करने के लिए शादी करते हैं, इसकी शादी में हज़ारों लोगों को इनवाइट करते हैं, ताकि लोगों पर आपकी धाक बैठ जाए कि आप अपने असूलों के बहुत
बहुत पक्के हैं और आपके असूलों और रस्मों से आप पर भला क्या असर पड़ता है। ज़िंदगी तो बेटी की तबाह हो जाती है ना, और इस शख्स की ज़हनी कैफ़ियत का अंदाज़ा आपको भला कैसे हो सकता है, जो आपकी बेटियों से शादी करके उम्र भर इनका नाम भी नहीं ले सकता। हालाँकि जितना हक इसे होता है, इतना तो आपका भी नहीं होता। बेशक वो आपकी बेटी होती है। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप ये रस्म, ये निकाह अपने ख़ानदान के किसी मर्द के साथ क्यों नहीं करते? क्या इनमें इतना हौसला नहीं होता, या फिर आपको इन पर एतमाद नहीं होता? हारून बोलने पर आया तो सभी देखते रह गए थे। सलमान गर्देजी की भी आंखें खुल गई थीं, और सैयद सिराज हुसैन का तो बस नहीं चल रहा था कि वो क्या से क्या कर डाले। मुर्शिद साई, पीर फ़कीर बनना तो बहुत आसान है, मगर किसी का मुर्शिद बनना बहुत मुश्किल होता है। अपनी खुशी और अपने गम के लिए तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इनके मामलात को अपने हथियार नहीं बनाना चाहिए। मेरी बड़ी अम्मा आप लोगों के पास एक रस्म, एक उम्मीद लेकर गई थी कि आप इनके लिए अल्लाह से दुआ करेंगे, आप इनकी दुआ का वसीला बनेंगे, उन्हें दुआ देंगे, मगर आप लोगों ने दुआ के बदले पूरी ज़िंदगी की कीमत मांग ली। आपने दुआ का सौदा किया। क्या कभी दुआ भी बेची जाती है? इंसान का चढ़ावा, इंसान का सदका तो अल्लाह ताला ने भी नहीं लिया। आप कैसे ले सकते हैं? बेशक आप सैयदज़ादे हैं, मैं आपका और आपके हाँ, आल औलाद का अब दिल की गहराइयों से एहतराम करता हूँ, मगर आपके इस ज़ुल्म में किसी भी मरव्वत और लिहाज़ का काम नहीं न काम नहीं लूँगा। लिहाज़ा आप समझ जाएँ कि शहरबानो मेरी बीवी है और आपके साथ नहीं जाएगी। ये मेरा फ़ैसला है। वो बात ख़त्म करते हुए बोला था, और सैयद सिराज हुसैन ना जाने क्या सोचते हुए अपनी बीवी और बेटी को साथ लेकर वापस चले गए थे। शहरबानो रोती बिलखती रह गई थी। हारून गर्देज़ी ने इसे इसके अपनों से जुदा कर डाला था। इसने शादी के दूसरे रोज़ ही शहरबानो को बाकी सबके साथ हवेली भेज दिया था। अलबत्ता खुद वो शहर ही रुक गया था। इसे अपना एक बहुत अहम काम निपटाना था। हालाँकि रहमान गर्देज़ी ने इसे भी साथ चलने के लिए बहुत इसरार किया था, मगर वो चाहते हुए भी गाँव नहीं जा सका था। बड़ी अम्मा अभी भी हारून से नाराज़ थी और इनकी तबीयत भी कुछ ख़राब थी, लेकिन शहरबानो के साथ उनका रवैया बहुत अपनायत भरा था, बल्कि अंदर से शहरबानो के सामने आकर अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती थीं। वो अपने आप को मुजरिम गर्दानती थीं, मगर वो ये नहीं सोचती थी कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। शायद ये भी अल्लाह की तरफ से हुक्म ही था कि शहरबानो की ज़िंदगी तबाह होने से बच गई थी, और शहरबानो इसे तो ऐसी चुप लगी थी कि ज़ोहरा आपी और चची बेगम के जाने के बाद से अब तक ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। वो तो जैसे गुमसुम होकर रह गई थी। ज़ीनी आपा ने इसे चादर ओढ़ाई और सारी चीज़ें समेट के इसे साथ चलने का कहा था। रास्ते के दौरान भी ज़ीनी आपा ने इसे मुखातिब करने की कोशिश की, मगर इसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया था। वो लोग हवेली पहुंचे तो रहमान गर्देज़ी की छोटी बेटी सानिया, जो अपने पेपर की तैयारी की वजह से इनके साथ शादी में नहीं जा सकी थी, तमाम मुलाज़िमों और गाँव की चंद औरतों के हमरा फूलों से भरी प्लेट लिए अपनी नई नवेली भाभी का इस्तकबाल करने के लिए तैयार खड़ी थी। हाय भाभी, कैसी हैं आप? शहरबानो गाड़ी से उतरी तो सबने फूलों की बरसात कर डाली थी। सानिया जल्दी से फूलों की प्लेट ज़ीनी आपा को थमाकर शहरबानो के पास आकर बहुत खुशी से चहकी थी, जैसे परसों से जान पहचान हो। अब भाभी ने कुछ कहा है या नहीं, वो कुछ भी सोचे समझे बगैर इसके गले लग गई थी। इसे तो यही देखकर बेपनाह खुशी हो रही थी कि इसकी भाभी इतनी खूबसूरत है। हारून भाई की जोड़ी बहुत सजेगी। सानी, अब बस करो, शहरबानो इतना सफ़र करके आई है, थकी हुई है, रास्ता दो इसे। ज़ीनी आपा ने सानिया को घूरा और एक हाथ से पीछे हटाया था। आएँ भाभी, अंदर आएँ। वो जल्दी से पीछे हट गई थी। रहमान गर्देज़ी इसकी उजलत और खुशी पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए थे। चलो ना बेटा, रुक क्यों गई हो? सलमान गर्देज़ी और खदीजा बेगम ने इसे आगे बढ़ने का कहा था। वो खामोशी से किसी सोच में डूबी अफसरदा सी अंदर आ गई थी। तुम गाँव कब आ रहे हो? 1 हफ्ता हो गया था इन लोगों को हवेली आए हुए, लेकिन हारून एक बार भी नहीं आया था। बस काम खत्म होते ही आ जाऊँगा। क्यों, खैरियत तो है ना? इसने फ़िक्रमंदी से पूछा, क्योंकि रहमान गर्देज़ी काफ़ी सख्ती से पूछ रहे थे। काम खत्म करो, जल्दी आओ, बल्कि कल ही आ जाओ, काम वाम फिर कभी होते रहेंगे। वो झुंझलाकर बोले थे, लेकिन चाचा सही कुछ बताएं तो सही, ऐसी क्या आफत आन पड़ी है? साहबजादे, तुम्हें पता तो है बीवियां भी किसी आफत से कम नहीं होती। ओह अच्छा अच्छा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हमारी आफत सॉरी बीवी को क्या हुआ है? वो काफ़ी दिलचस्पी और शरारत भरे लहजे में बोला था। बेटा, यही तो मसला है कि इसे कुछ नहीं होता। वो हर बात पे चुप रहती है। इसका पूरा दिन खामोशी से गुजर जाता है। कमरे में खाना खाती है, नमाज़ पढ़ती है और सो जाती है। बस यही इसकी ज़िंदगी है, और अम्मा सही से देखकर चलती रहती हैं। इनकी तबीयत भी मुसलसल ख़राब है। रहमान गर्देज़ी अब कुछ मुतफक्कर सा बोल रहे थे। ओके, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आने की। आप परेशान ना हो, आकर सब ठीक कर लूँगा। वो कहते-कहते फिर शरारत से कह गया था, हाँ, हमें भी पता है कि तुम्हारे आने से सब ठीक हो जाएगा। इसलिए तो तुम्हें आने का कह रही हैं। वो भी शरारत से बोले थे। इंशाअल्लाह आ रहा हूँ। और सुनाए, मुर्शिद साई की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिला? नहीं, इन लोगों ने तो दोबारा कोई रब्ता ही नहीं किया। अब पता नहीं वो मेरी बात समझ गए हैं या फिर कोई रिएक्शन सोच रहे हैं। हारून ने लापरवाही से कहा था, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम फिर भी अपना ख्याल रखा करो। ऐसे लोग बदला लेने में भी नहीं भूलते, कहीं कोई नुकसान ना कर दे। रहमान गर्देज़ी फ़िक्रमंद होने लगे। डोंट वरी चाचा साईं, अल्लाह सब बेहतर करेगा। इसने इन्हें तसल्ली देकर फ़ोन बंद कर दिया था। 1 हफ्ते का कहते-कहते इसे 2 हफ्ते लग गए थे, और वो शाम ढले इतने तवील सफ़र के बाद थका-हारा घर आया तो इत्तेफ़ाकन पहला सामना शेरबानो से ही हुआ था। वो हवेली के लॉन की सीढ़ियों पर बैठी न जाने क्या सोच रही थी, जब इतनी बड़ी रोश पर फैली हारून की ब्लैक मर्सिडीज़ सीढ़ियों के करीब ही आकर रुकी थी। इसने हारन पर हाथ रखकर शहरबानो की सारी मुहब्बत तोड़ डाली थी। इसलिए चौंक कर चंद कदम के फासले पर खड़ी गाड़ी को देखा। इतने में वो खुद भी गाड़ी से उतर आया था। ग्रे कलर के सिंपल से शलवार सूट में बलबूस वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था, लेकिन शहरबानो को सामने देखकर इसकी थकन में काफ़ी हद तक कमी आई थी। कैसी हैं आप? वो करीब आकर कुछ बोला ही था कि शहरबानो एकदम उठकर अंदर भाग गई थी, और वो देखता रह गया था। इसे इस इस्तकबाल की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन खैर। हारून, तुम कब आए? यहाँ क्यों खड़े हो? ताई अम्मा न जाने किस काम से बाहर निकली थी। हारून को देखकर खुश हो गई। अभी आया हूँ ताई अम्मा, आप सुनाएं कैसी हैं? वो सर झटक कर इनके साथ अंदर आ गया।
हारून भाई, सानिया इसे देखकर एकदम सोफे से उतरी थी और इसका लहजा खुशी से भर गया था। कैसी हो छोटी, क्या कर रही हो आजकल? हारून इसे बाजू के घेरे में लेकर सोफे पर बैठ गया था। सलाम अम्मा साई। खदीजा बेगम को देखकर इसे एक बार फिर सोफे से उठना पड़ा था। जीते रहो, आबाद रहो। वो 2 हफ्तों बाद बेटे की सूरत देख रही थी, लिहाजा सारी खफी बुलाकर इसके माथे पर प्यार देके बेना ना रह सकी। भाई इतनी देर क्यों लगाती? भाभी तो हमसे बात भी नहीं करती, मैं तो बुला बुला कर थक जाती हूँ। मैं बहुत मिस कर रही थी आपको। सानिया ने अपना किस्सा शुरू कर डाला और वो दिलचस्पी से बैठकर सुनता रहा था। अगर तुम में ज़रा सी भी अकल है तो अपने भाई को कमरे में जाने दो, वो थका हुआ आया है, इसने अभी कपड़े भी तब्दील करने होंगे। ताई अम्मा दोबारा ड्राइंग रूम में आई तो बेटी की हमाकत पर इसे डांटने लगी। ओह सॉरी भाई, मुझे ख्याल नहीं रहा कि भाभी आपका इंतजार कर रही होंगी। वो शर्मिंदा होने लगी। अरे पागल, ऐसी कोई बात नहीं, बैठो तुम। नहीं, आप पहले कपड़े चेंज कर लें। ओके स्वीटहार्ट। वो इसका गाल थपक कर सीढ़ियाँ चढ़ गया था और अपने बेडरूम में आते हुए इसकी चाल कुछ और हो चुकी थी, जैसे हल्का सा खुमार छूकर गुजर गया हो। वो कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा खाली नजर आया। एक पल के लिए इसे तशवीश सी हुई, लेकिन अगले ही पल बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनकर मुतमिन हो गया था। वो थके थके से अंदाज में बेड पर ढेर हो गया। इसे इस तरह चारों शाने चत लेटे ना जाने कितनी देर गुजर गई, लेकिन शहरबानो वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी। अभी वो इसे पुकारने का सोच ही रहा था कि वो खुद ही बाहर आ गई थी। इसके हाथ पाँव और चेहरा भीगा हुआ था। यकीनन वो वजू करके आई थी। लगता है मुझसे नाराज़ हैं आप। वो जाए-नमाज़ लेकर बड़ी ही थी कि हारून बेड से उठकर इसके सामने आ गया था। रास्ता दें मुझे, पहले आप मेरी बात का जवाब दें। मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, पीछे हटें। शहरबानो खुफ़ी से बोली। नमाज़ पढ़ने तो मुझे भी जाना है। अभी मगरिब की अज़ान होने में भी 10 मिनट बाकी हैं। सोचा मोहतरमा, आपको नमाज़ की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? इसीलिए कि मैं आपको देखना नहीं चाहती। वो गुस्से से कहती अपने हाथ छुड़ाकर रुख मोड़ गई थी, जबकि हारून का पलक शगाफ कहका बुलंद हुआ था। शायद ज़िंदगी में पहली बार वो इस तरह बेख्तियार और दिल खोल के हँसा था। इसने शहरबानो के हाथ से जाए-नमाज़ लेकर टेबल पर रख दी और इसके दोनों हाथ थाम लिए थे। ओह! तो आप मुझे छोड़कर नमाज़ में पनाह ढूँढ रही हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप मुझे नहीं देखेंगी तो अल्लाह ताला आपको नहीं देखेगा। आप अभी मेरे हक़ूक़ नहीं जानती ज़ोजा मोहतरमा। इसने रुख मोड़कर खड़ी शहरबानो को बहुत नरमी और इस्तेहक़ाक़ से बाहों में भर लिया था। और शहरबानो इसकी इस कदर बेबाक हरकत पर घबरा गई थी। इसके पहले से भीगे हाथों में पसीना उतर आया था। यूँ लग रहा था शहरबानो की जान हारून की बाहों के घेरे में बंध गई हो। इसका दिल सीने के पिंजरे से टकराकर पागल होने लगा था। शर्म से गाल तप उठे थे। आपको कैसे पता हो मेरी जान? मैंने आपका कुछ संवारा ही है, बिगाड़ा नहीं। फिर भी आप मुझसे ही खफ़ा हैं? इसने कब से शहरबानो के कानों में काफ़ी गंभीर लहजे में कहा था, जबकि शहरबानो इसकी हज़ार में जकड़ी कुछ भी कहने के काबिल नहीं रही थी। प्लीज़ मुझे जाने दें, नमाज़ का वक़्त हो रहा है। वो लरसती हुई आवाज़ में बमुश्किल बोली थी। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम। ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वो बहुत ही दिलकश लहजे में कहता अपने लफ्ज़ों, अपनी वजाहत और मर्दानगी का सुर इसके चारों सौ बिखेर रहा था और वो अज़ल से कमज़ोर दिल की नरम कोमल सी ढीली ढाली लड़की बेबसी से अपनी धड़कनें संभालती रह गई थी। अल्लाह को पा लेने की तलब में इसके दिए हुए रिश्तों से मुँह फेर लेना भी अल्लाह को पसंद नहीं। शहरबानो इसने बाहों का हसार खोलते हुए शहरबानो का रुख अपनी सिमत मोड़ लिया था। वो नज़रें झुकाए हुए थी। हम लोग सिर्फ नमाज़ अदा करके ये समझ लेते हैं कि हमारा रब हमसे खुश हो गया है और हमने जन्नत खरीद ली है, लेकिन हम ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि हमारे रब की खुशी तो और भी बहुत से कामों में है, जैसे एक मियाँ बीवी की खुशगवार ताल्लुकात में, जैसे घर में मौजूद बड़ों का एहतराम करने में, जैसे हर काम को रब की रज़ा मानने में, जैसे सास ससुर को भी अपने माँ बाप समझने में और जैसे एक अच्छी बीवी बनने में। इसने बड़ी खुश उसलूबी से अपने मतलब की बात कह डाली थी और शहरबानो ने अगले ही पल चौंक कर इसे देखा था, लेकिन वो गहरी सांस खारिज करता सामने से हट गया था। तुम नमाज़ पढ़ो, तब तक मैं भी वज़ू कर लेता हूँ। वो आहिस्ते से कहकर वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा। शहरबानो खोई-खोई ही आगे बढ़ गई। वो कपड़े बदल कर वज़ू करके निकला, तब जाकर अज़ान की आवाज़ सुनाई दी थी। वो जो इतनी देर से नमाज़ नमाज़ पुकार रही थी, अब अज़ान हुई तो नज़रें चुराने पर मजबूर हो गई थी। अलबत्ता वो कुछ भी जताए बगैर अपनी जेब से सफ़ेद टोपी निकालता बाहर निकल गया था। इसे मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाना था और मस्जिद इनकी हवेली से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। शहरबानो ने हारून की इतनी गहरी बात का असर भी काफ़ी गहराई से ही लिया था, जिसका नतीजा ये निकला कि वो सुबह सानिया के बुलाने पर नाश्ता करने चली आई। हालाँकि वो इतने दिनों से अकेली बेडरूम में ही नाश्ता और खाना वगैरह लेती थी और सानिया रोज़ाना इसे बुलाने आती नाउम्मीद लौट जाती थी। लेकिन आज तो सानिया के दिल की कली भी खिल उठी थी। अस्सलाम वालेकुम। इसने टेबल पर मौजूद अफराद को सलाम किया था और वो सब पहली बार इसकी आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुए थे। जीती रहो बेटा, खुश रहो। रहमान गर्देज़ी ने बाकायदा उठकर इसके सर पे हाथ फेरा था। अस्सलाम वालेकुम। ज़मान गर्देज़ी डाइनिंग रूम में दाखिल हुए तो इसने उन्हें भी सलाम किया था और ज़मान गर्देज़ी भी इसे सबके साथ बैठा देखकर बेइंतहा खुश हुए थे। और खुश तो बड़ी अम्मा भी बहुत हो रही थी। वो जो इतने दिनों से अपने मुर्शिद साईं से धोखे का रोग लिए बैठी थी, आज कुछ देर के इस रोग को भी भूल गई थी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? हारून वाइट खद्दर के शलवार कुर्ता में मलबूस बहुत ही फ्रेश मूड के साथ अपने कफलिंग्स बंद करता अंदर दाखिल हुआ था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। रहमान गर्देज़ी मुस्कुराकर बोले थे, लेकिन बड़ी अम्मा का मूड फिर से खफा खफा सा हो गया था हारून को सामने देखकर। सलाम अर्ज़ करता हूँ बड़ी अम्मा, इसने इनकी सिमत झुकते हुए कहा। हाँ हाँ, तेरे सलाम पहुँचे हुए हैं मुझे। वो रुख मोड़ गई। जो भी देखो मुझसे ही खफा है। अब आप तो मुझसे नाराज़ ना हो बड़ी अम्मा। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, आपको एक अदद बहू भी ला कर दी है, वो भी आपकी अपनी पसंद करदा।
اس نے بڑی اماں کے گھٹنے تھام لیے تھے اور وہ جو اس پوتے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھا چکی تھی، اب اس کے اس طرح گھٹنے پکڑ لینے پر اسے دھکا کیسے دے سکتی تھی؟ ذرا سے منانے پر ہی مان گئی تھی اور اس کی پیشانی چوم کر کندھا چھڑکنے لگیں۔ پھر انہوں نے شہربانو کو بھی اسی طرح پیار اور شفقت سے نوازا تھا۔ آج کی صبح تو بہت ہی سہانی لگ رہی ہے ہمیں، ثانیہ نے آتے ہی چھیڑا تھا سب کو۔ اللہ نظر بد سے بچائے، چچی بیگم نے فوراً کہا تھا، لیکن نظر جب لگتی ہے تو چاہے کچھ بھی کر لو بس لگ جاتی ہے، اور ان لوگوں کو بھی لگ گئی تھی۔ یوں اکٹھے بیٹھے ہوئے وہ بھی ناشتہ کر رہے تھے جب ان کی ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں، اس نے پیغام دیا۔ کون لوگ؟ ہارون نے نیپکن سے ہاتھ پوچھتے ہوئے پوچھا، لہجہ کافی سرسری سا تھا۔ سید سراج حسین اور سید قاسم حسین ہیں کیا؟ ملازمہ کے بتانے پر شہربانو کے ہاتھ میں چائے کا کپ لرز گیا اور چائے ٹیبل پر چھلک گئی تھی۔ ہارون کے ساتھ ساتھ رحمان گردیسی اور زمان گردیسی بھی ایک دم چونک گئے تھے، کیونکہ اتنے دنوں سے ان لوگوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اور آج اچانک ان کے گاؤں چلے آئے تھے۔ یقیناً وہ کوئی خاص مقصد کے لیے ہی آئے ہوں گے۔ ہارون گہری سانس کھینچتے ہوئے کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا تھا، لیکن شہربانو ہارون سے بھی زیادہ تیزی سے اٹھ کر باہر کو لپکی تھی، مگر اس سے پہلے کہ ڈرائنگ روم کی حد پار کرتے ہارون نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھام پکڑی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ہارون کا لہجہ بے لچک تھا۔ وہ میرے چچا سائیں اور لالا جی آئے ہیں، میں ان سے ملنے نہیں ابھی ہم لوگ ملنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اگر آپ سے ملنا ہوا تو تھوڑی دیر بعد مل لیں گے، آپ فی الحال کمرے میں جائیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے بولا تھا، لیکن وہ میں کہہ رہا ہوں آپ کمرے میں جائیں۔ اب کی بار اس کی آواز قدرے بلند تھی۔ وہ اور شہربانو وہاں موجود تمام افراد پر نگاہ ڈالتی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے چلی گئی تھی، اور ہارون ابا سائیں اور چچا سائیں کے ساتھ حویلی کے مردان خانے میں آ گیا تھا، جہاں سید سراج حسین اور سید قاسم حسین ان کے منتظر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم مرشد سائیں، ہارون نے سلام میں پہل کی تھی۔ سید معراج حسین سے تو وہ لوگ واقف تھے، البتہ سید قاسم حسین سے پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی تھی کیونکہ وہ تقریباً 6 روز قبل ہی انگلینڈ سے واپس آئے تھے اور یہاں ہونے والے کارنامے کا انہیں ابھی پتہ چلا تھا۔ وہ شہربانو کے سب سے بڑے بھائی تھے، جنہیں وہ لالا جی کہتی تھی۔ کیسے ہیں مرشد سائیں؟ آج ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ ہارون نے بہت اچھے طریقے سے ماحول میں رچی خاموشی کو توڑا تھا اور بات کا آغاز کیا۔ تم اپنی سناؤ برخوردار، تم کس حال میں ہو اور ہم تمہیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ تم نے ہمارے ساتھ کیا ہی کچھ ایسا ہے کہ بھولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ لب بھیجتے ہوئے بولے تھے۔ میں نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بس آپ کی رسم کے خلاف قدم اٹھایا ہے مرشد سائیں۔ میں نے ایک لڑکی کی زندگی برباد ہونے سے بچائی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا میں نے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا تھا۔ تم نے ہماری لڑی میں صدیوں سے چلی آنے والی رسم کو توڑا ہے، ہمارے بڑے بزرگوں کے رواج اور روایات کو داغ لگایا ہے، تم نے اچھا نہیں کیا۔ خیر چھوڑو اس بات کو، شہربانو کہاں ہے؟ بلاؤ اس کو۔ وہ بہت ہی بے نیازی سے بولے تھے۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں اس سے ملنے کی؟ اس نے استفسار کیا تھا۔ وہ ہماری بیٹی ہے، کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے؟ وہ بہت سب کرتے ہوئے بولے۔ آپ کی بیٹی اب ہماری بیوی ہے، اس لیے میرا حق ہے کہ میں اس سے ملنے والے ہر بندے سے وجہ پوچھ سکوں۔ وہ بھی بحث کرنے پہ آتا تو پھر کچھ بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ہارون بیٹا چھوڑو ان سب باتوں کو، جاؤ شہربانو کو لے کر آؤ۔ رحمان گردیسی نے درمیان میں بول کے ہارون کے کچھ بولنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ مجبوراً وہ اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا، جہاں وہ اکیلی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ چلیے زوجہ محترمہ، آپ کی ملاقات آئی ہے۔ وہ اسے آنسو بہاتے دیکھ کر نہ جانے کیوں طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ کون آیا ہے؟ وہ بے تابی سے استفسار کر رہی تھی۔ چل کر خود دیکھ لیجیے۔ وہ دروازے کا ہینڈل پکڑے کھڑا تھا۔ شہربانو جلدی سے چادر اوڑھ کر باہر نکل آئی تھی۔ رحمان گردیسی اور زمان گردیسی ان کو تنہائی فراہم کرتے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل گئے تھے، البتہ ہارون اندر ہی صوفے پہ براجمان تھا۔ شہربانو اپنے لالا جی اور چچا سائیں سے گلے مل کر خوب روئی تھی، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ صبر سے کام لو بیٹا، صبر سے، ہم تمہیں لینے کے لیے ہی آئے ہیں، انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی تھی، جبکہ ہارون نے بری طرح چونک کر ان کو دیکھا تھا۔ وہ جیسے کچھ سوچ کر آئے تھے۔ وہاں اتنے میں ہارون کا سیل فون بج اٹھا تھا۔ کال یقیناً خاصی اہم تھی، تبھی وہ اٹھ کر راہداری کی سمت چلا آیا تھا، جب سید سراج حسین، سید قاسم حسین اور شہربانو کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ تقریباً 5 منٹ کال سننے اور 5 منٹ اپنا کوئی کام نمٹانے کے بعد دوبارہ اندر داخل ہوا تو وہ لوگ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شہربانو ہمارے ساتھ جا رہی ہے؟ کس سے پوچھ کر؟ اس کا انداز سرد تھا۔ اس انداز پر شہربانو اور سید قاسم نے ٹھٹک کر دیکھا تھا۔ ایک بیٹی کے باپ کی طبیعت خراب ہو اور وہ ہسپتال میں پڑا ہو تو میرا خیال ہے کوئی بھی روکنے کا حق نہیں رکھے گا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اسے روکنے کا کوئی بھی حق نہیں رکھتا سوائے اس کے شوہر کے۔ وہ کافی سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ برخوردار تم جان بوجھ کر دیکھیے مرشد سائی، آپ چاہے جو بھی جتن کر لیں، میں اپنی بیوی کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا، چاہے اس کے والد محترم بیمار پڑ جائیں، چاہے پورا خاندان۔ ہم اسے لے کر جا رہے ہیں۔
اوکے، اگر آپ میری اجازت کے بغیر اسے یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، جائیے۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹ گیا تھا، لیکن اس کے خاص ملازم کافی بھاری بھرکم اسلحے کے لیے کھڑے تھے۔ وہ لوگ اس وقت نشانے کی زد میں تھے۔ شہربانو کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اللہ کے لیے ہارون، آپ کچھ خیال کریں۔ شہربانو پہلی بار اس طرح مخاطب ہوئی تھی۔ وہ کسی اور موڈ میں ہوتا تو ضرور انجوائے کرتا، مگر اس وقت پلیز ہارون، میرے بابا سائیں کی طبیعت خراب ہے، مجھے جانے دیں پلیز۔ وہ کوئی بدمزگی نہیں کروانا چاہتی تھی، جب ہی لجاجت سے کام لیا تھا۔ آپ آج کی گئیں کبھی واپس نہیں آئیں گی شہربانو، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ کہیں نہ جائیں۔ وہ کسی طور ماننے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ شہربانو نے ہاتھ بھی جوڑ دیے تھے۔ ٹھیک ہے ہارون گردیزی، آپ نے جو چاہا وہ کیا، اب جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ چلیے چچا سائیں، چلتے ہیں اب۔ سید قاسم حسین پہلی بار بولے تھے اور فیصلہ کن بولے تھے۔ شہربانو کا ہاتھ چھوڑ کر انہیں چلنے کا کہا تھا اور وہ بھی خاموشی سے لب بھیج کر وہاں سے چل پڑے تھے۔ چچا سائیں لالا جی، وہ پیچھے سے پکاری تھی، لیکن سید قاسم حسین نے اسے روک دیا تھا۔ خود تیزی سے باہر نکل گئے تھے۔ ہارون نے اپنے آدمیوں کو جانے کا اشارہ کیا اور اس کی سمت پلٹا، مگر وہ لہرا کر فرش پر آ رہی تھی۔ اسے ان کے چلے جانے کا اتنا گہرا صدمہ ہوا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، اور ہارون کچھ گھبرا سا گیا تھا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی گنگنا رہی تھی جب بمشکل اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے کچھ یاد آنے پر چونک کر گردن موڑی۔ ہارون چند انچ کے فاصلے پر لیٹا سو رہا تھا، لیکن اس کا ہاتھ شہربانو کے اوپر پورے استحقاق سے رکھا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کے لمس اس کی اتنی قربت سے یکدم تڑپ کر اٹھ جاتی، لیکن آج کچھ ایسا تھا کہ وہ اس کے لمس کی وجہ سے نہیں، اپنے اندر اٹھنے والی نفرت کی وجہ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ اس کے اس طرح یکدم جھٹکنے سے اٹھ جانے کی وجہ سے ہارون کی نیند بھی ٹوٹ گئی تھی۔ صبح وہ گہرے صدمے کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو جانے کی بنا پر بے ہوش ہو گئی تھی، اور ڈاکٹر نے اس کے لیے ڈرپ تجویز کی تھی، اس لیے دوائی کے زیر اثر وہ رات گئے تک غنودگی میں رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہارون نے گونی کے بل لیٹتے ہوئے اس کی کلائی چھو کر دیکھی۔ پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیے، وہ ناگوار لہجے میں بولی تھی۔ کیوں ہاتھ نہ لگاؤں؟ یہی تو وقت ہوتا ہے آپ کو ہاتھ لگانے کا، اس نے معنی خیزی سے کہتے ہوئے شہربانو کو بازو سے پکڑ کر اپنی سمت جھکا لیا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی کی وجہ سے وہ ابھی تک اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ پایا تھا، مگر مجھے آپ کا لمس اذیت دیتا ہے، نفرت ہوتی ہے مجھے آپ سے۔ آپ انسان نہیں، بہت بے رحم اور بے حس جانور ہیں۔ شہربانو یکدم ہارون کا ہاتھ اٹھا تھا اور شہربانو کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ کبھی کسی اور کی وجہ سے مجھ سے اونچی آواز میں بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر تمہارے ساتھ کچھ ناانصافی یا کچھ برا کروں تو پھر چاہے کچھ بھی کر لینا، کچھ بھی، وہ لفظ چبا چبا کر کہتا بستر سے اٹھ گیا تھا۔ شہربانو روتی ہوئی دوبارہ تکیے پر گر گئی تھی، جبکہ ہارون دروازہ کھول کر کمرے سے چلا گیا تھا، اور اس نے ساری رات ٹھنڈک میں ٹیرس پر کھڑے کھڑے گزار دی تھی۔ فجر کی اذان ہوئی تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا، اور دوبارہ اس سے کوئی بات کیے بغیر شہر واپس چلا گیا تھا۔ اتنی جاگیر، اتنی جائیداد ہونے کے باوجود وہ اپنا بزنس کرتا تھا۔ اسے باپ دادا کی کمائی پر عمر بھر عیش کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ حالانکہ رحمان گردیزی اور زمان گردیزی اسے منع کرتے تھے کہ اور کاموں میں پڑنے کی بجائے وہ اپنی جاگیر سنبھالے تو انہیں خوشی ہوگی، لیکن اسے ابھی سے جاگیرداری کے جھنجھٹ میں پڑنا پسند نہیں تھا، اگرچہ وہ لوگ اصرار بھی کرتے رہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے ان کا اکلوتا لاڈلا سپوت ہر وقت حویلی میں نظر آتا رہے، مگر وہ جو پہلے 1-2 ہفتے بعد آ جاتا تھا، اب 2 ماہ گزر جانے کے بعد بھی حویلی آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شہربانو مسلسل 2 ماہ سے اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اس نے سب سے ترک تعلق کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ثانیہ اور زینی آپی سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ زینی آپا دوبارہ اپنے سسرال سے بطور خاص اس سے ملنے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ تو جیسے گونگے کا گڑ کھا بیٹھی تھی۔ شہربانو، تم بتاتی کیوں نہیں؟ بولو، کیا ہوا ہے؟ کوئی ناراضگی ہوئی ہے تم دونوں میں؟ اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ اللہ کے لیے کچھ تو بتاؤ، ہم سے بات تو کرو۔ زینی آپا نے بالآخر اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کیوں کروں آپ سے بات؟ کیا رشتہ ہے میرا اور آپ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں؟ جس حوالے سے آپ مجھے دیکھ رہی ہیں، اس حوالے کو 2 ماہ سے میں نے تسلیم کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ سب لوگ دھوکے باز، دوغلے اور انتہائی بے رحم لوگ ہیں۔ انسانیت ختم ہو چکی ہے آپ لوگوں سے۔ میں آپ سب کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ چلی جائیں یہاں سے۔ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے سے بہتر ہے میں اکیلی خاموش کمرے میں بیٹھی رہوں۔ وہ یکدم پھٹ پڑی تھی اور اس کے اندر پلنے والا لاوا پوری شدت سے باہر آیا تھا۔ زینی آپا کتنے ہی لمحے شدت سے بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کے الفاظ، اس کا لہجہ سن کر وہ بے یقین ہو رہی تھی کہ کیا یہ سب کچھ شہربانو نے ہی کہا ہے نا؟ وہ شہربانو جو ذرا سا اونچا بولتے ہوئے بھی 100 بار سوچتی تھی، جس کا لہجہ ہی اتنا ملائم ہوتا تھا کہ ہر بات میٹھی لگتی تھی، لیکن شہربانو اس کی وجہ
कोई वजह भी तो होगी ना, आखिर हुआ क्या है? जीनी आपा ने अपने आप को संभालते हुए दोबारा से सिलसिला कलाम जोड़ा था। जब आपका भाई मेरे घर वालों के साथ ऐसा सलूक कर सकता है, मेरे बाबा की ख़राब तबीयत का सुनकर भी इस पर कोई असर नहीं हो सकता, मेरे रिश्तों की इज़्ज़त नहीं कर सकता, मेरे बड़े बुज़ुर्गों की रस्मों रिवाज तोड़ सकता है, तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। मैं भी इसके रिश्ते नाते निभाने की पाबंद नहीं हूँ। वो चीख पड़ी थी और जीनी आपा को सारा मामला समझ आ गया कि वो किस वजह से ऐसी हो रही है। शहरबानो, वो भी तो तुम्हारा भला ही चाहता है, तुम्हारी ज़िंदगी को बेरंग होने से बचा रहा है, बल्कि तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी आइंदा नस्ल में पैदा होने वाली बेटियों को भी बचाने की कोशिश कर रहा है। आज अगर तुम इस रस्म की भेंट चढ़ जाती तो कल तुम्हारे बड़े भाई की बेटी को भी इस रस्म के नाम पर कुर्बान किया जा सकता था। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारी भतीजी के साथ ऐसा कुछ हो? सीनी आपा ने इसे आइंदा का मंजर दिखाने की कोशिश की थी। वो अपनी भतीजी का सुनकर चौंक गई थी। तुम अपने बारे में ना सोचो, मगर एक बार आने वाली नस्ल की बेटियों को सोचो, इनका क्या हाल होगा। और फिर ये भी सोचना कि हारून किस हद तक गलत है। वो इसके कंधे पर हाथ रखकर बाहर निकल गईं और ये बात हकीकतन इसे हिला गई थी। अपने से आगे तो इसने सोचा ही नहीं था कि इसकी भतीजी भी। चंद दिनों से इसकी तबीयत कुछ बोझल सी हो रही थी, लेकिन ना तो वो कमरे से बाहर निकली थी और ना ही किसी और को तबीयत की खराबी का बताया था। इसीलिए इसी तरह दिन गुजरते रहे और इसकी सेहत गिरती रही। इसे अपनी कमज़ोरी और नकाहत का एहसास तो था, मगर अपना ख्याल रखने का एहसास नहीं था। इसे बस अपनों से जुदाई और रस्म-ओ-रिवायात के टूटने का गम खाए जा रहा था। वो दिन भर बस यही सोचती रहती थी। अब तो दिमाग भी चकराने लगा था। पहले इसकी हालत घर वालों ने नोट की थी और आज तो हारून भी इसे देखकर ठिठक गया था। ज़ोहर का वक़्त था जब वो शहर से गाँव आया था। पहली ही मुलाकात चचा साईं और अब्बा साईं से हुई थी। वो लोग किसी पंचायत से वापस आए थे और इनसे मिलकर बड़ी अम्मा को सलाम करता वो अपने कमरे में आ गया था। शहरबानो बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी किसी गैर मरी नुक्ते को घूरती हुई गहरी सोच में गुम थी। दरवाजे खुलने की आहट पर भी इसकी इस सोच का तसलसल नहीं टूटा था। हारून इसे इस हाल में देखकर चौंक ही तो गया था, क्योंकि वो इसे अच्छे भले हाल में छोड़ गया था। इसकी सेहत भी ठीक-ठाक थी, लेकिन अब तो वो काफ़ी बीमार नज़र आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। इसने अपने और शहरबानो के दरमियान मौजूद खफकी की दीवार के बावजूद सलाम करते हुए इसे मुखातिब किया था। शहरबानो ने एकदम चौंकते हुए सर उठाकर इसकी सिमत देखा था। कैसी हैं आप? इसकी तरफ से सलाम का जवाब न पाकर इसने दूसरा सवाल कर डाला, मगर यहाँ तो दूसरे सवाल का जवाब भी नदारद। बेड की पायखाने वाली साइड से घूमकर इसकी साइड में आया और इसके करीब ही बैठ गया था। लगता है आपकी तबीयत ख़राब रही है, आपकी सेहत बहुत डाउन लग रही है। इसने बहुत ही नॉर्मल से अंदाज में फ़ौरन ही अपनी तशवीश का इज़हार कर दिया था। मेरी सेहत डाउन होने से क्या फ़र्क पड़ता है, ज़िंदा तो हूँ, बेचैनी से कहती बेड से उठने लगी थी कि हारून ने इसका हाथ सख्ती से थाम लिया था। शहरबानो, आपकी इस बदगुमानी और खफगी की वजह से मैं इतने दिन हवेली नहीं आया। मुझे पता है कि आपको मुझसे चिढ़ होगी, मुझ पर बार-बार गुस्सा आएगा, जिसकी वजह से मेरा मूड भी ऑफ होगा। तो इससे बेहतर था कि हम लोगों का सामना ही ना होता। लेकिन एक इंसान अपने घर से कितनी देर दूर रह सकता है। मैं भी आज चला आया, आपकी खफगी और बदगुमानी मिटाने के इरादे से। वो इसका हाथ नरमी से दबा रहा था। बदगुमानी मिटाने के इरादे से। जिस तरह आप अपने घर से दूर नहीं रह सकते, इसी तरह मैं भी नहीं रह सकती। मेरा भी दिल चाहता है अपनों से मिलने को, अपने घर जाने को, सबको देखने के लिए। मैं भी तड़पती हूँ। वो दबे लहजे में चीख कर कहती अपना हाथ छुड़ाने लगी। मैं आपको अपनों से मिलने से कभी ना रोकता, अगर इनके अज़ाइम अच्छे होते, अगर वो आपको दोबारा मेरे पास आने देते, तो मैं आपका जाना थोड़ी देर के लिए तो अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, मगर हमेशा के लिए नहीं। इसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा था। मगर मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मगर मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ। वो इसके हाथ को नरमी से करीब करते हुए हाथ की पुष्ट पर बोसा दे गया था। शहरबानो गंग सी हो गई थी। इसके होठों का लम्स जिस्म में सनसनी सी भर गया था। इसके सारे एहतजाज और बदगुमानियाँ जैसे ठिठर के रह गए थे कि ये क्या हुआ है। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दे, वो मरे-मरे लहजे में बमुश्किल बोली थी। इतने दिनों बाद आया हूँ, मिलेंगी नहीं मुझसे? इसके कहने का अंदाज़ ही कुछ ऐसा था कि शहरबानो चेहरा झुकाने पे मजबूर हो गई थी और हारून ने इतने नाज़ुक फसूखेज़ लम्हों को रफ्ता-रफ्ता अपनी दस्तरस में लेना शुरू कर दिया था। मुसलसल इतने दिनों से ज़हनी जंग लड़-लड़ के दोनों ही थक चुके थे। एक दूसरे के कुर्ब का सहारा मिला तो इनकार नहीं हो सका था। शहरबानो तो थी ही नरम मिज़ाज और सख्ती का खोल चढ़ा ही नहीं सकती थी। बस बाप की बीमारी का सुनकर इतनी तल्ख़ हो गई थी और ये तो इसका हक बनता था कि इस तरह गुस्सा करे, क्योंकि ऐसे हालात में तो बंदा ना जाने क्या-क्या कर डालता है। इसने तो फिर सिर्फ गुस्सा ही किया था और हारून को भी इसके गुस्सा ख़त्म होने का इंतज़ार था, ताकि वो आराम से इसे दोबारा समझा सके। लेकिन पहले इसने प्यार भरे अंदाज में समझाना शुरू किया था।
बेटा तुम और कुछ ना करो, बस शहरबानो को डॉक्टर के पास ले जाओ, इसका चेकअप कराओ, क्या मसला है इसे, वो इतनी कमज़ोर और जर्द क्यों हो रही है। अम्मा साईं ने नाश्ते की मेज़ पर पहला जिक्र यही किया था कि शहरबानो बीमार लगती है। जवाबन सभी ने हाँ में हाँ मिलाई थी। ठीक है, इस बार शहर जाते हुए इसे भी साथ ले जाऊँगा, आप भी साथ चलिएगा, फिर आप लोगों को वापस भेज दूँगा और ख़ुद वहीं रुक जाऊँगा। इसने प्रोग्राम तरतीब दिया। हाँ ठीक है, वो सर इस बात में हिलाते हुए इसके लिए चाय बनाने लगी, मगर वो लोग अभी प्रोग्राम ही बना रहे थे कि शहरबानो की तबीयत ज़रा ज़्यादा ख़राब हो गई। आज सुबह से इसे बार-बार उबकाई आ रही थी, जिसकी वजह से वो मज़ीद नकाहत का शिकार हुई थी और ब्लड प्रेशर भी लो हो गया था। मुलाज़िमा मामूल के मुताबिक इसका नाश्ता देने कमरे में गई तो इसको नीम बेहोशी की हालत में देखकर उल्टे पाँव भागी थी। साहब जी, वो बीबी जी बहुत बीमार हैं, बेहोश पड़ी हैं। रज़िया हाँफ रही थी। हारून परेशान होता फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया था। अम्मा साईं, चची अम्मा और सानिया भी उठ खड़ी हुई थी। हारून सुबह सवेरे ही बेडरूम से निकल आता था, कभी ज़मीनों की तरफ निकल जाता था और कभी हवेली के लॉन में ही घास और शबनम को रोनते हुए बातों में वक्त गुजार देता था। आज भी वो ज़मीनों की तरफ गया था और वापसी पर सबके साथ ही नाश्ता करने बैठ गया था। और अब इसकी तबीयत की ख़राबी का पता चला तो अपनी कोताही का एहसास हुआ था, क्योंकि शहरबानो की तबीयत फजर से ही ख़राब लग रही थी। वो 2 बार उठकर बाथरूम गई थी और वो इसे मेडिसिन लेने का मशवरा देकर बाहर चला आया था। क्या हुआ है शहरबानो, बेटा आंखें खोलो। हारून ने इसे बेड पर डाला तो अम्मा साईं ने फिक्रमंदी से इसका हाथ थाम कर चलाया था। इसका गाल थपका। रज़िया इधर आओ। चच्ची अम्मा ने शहरबानो को एक नज़र देखकर कुछ सोचते हुए कहा था। जाओ, वो लेडी डॉक्टर हमारे गांव में रहती है, इसे बुला कर लाओ। लेडी डॉक्टर के जिक्र पर अम्मा साईं और हारून बैक वक्त चुके थे। चची अम्मा, हारून ने कुछ कहना चाहा मगर उन्होंने रोक दिया था। तुम बाहर जाओ बेटा, ये तुम्हारा मसला नहीं है। हारून इनकी टोकने पर शर्मिंदा सा होकर बाहर आ गया था और फिर सचमुच चची अम्मा के शक ने इन्हें एक खुशखबरी सुना डाली थी, जिससे वो सभी लोग इन्हीं हारून भी बेइंतहा खुश हुआ था। और बड़ी अम्मा तो वारी सबके हो रही थी। उन्होंने बेहोश पड़ी शहरबानो की बलाएं ले डाली थी। लगता है आप इस खुशखबरी से खुश नहीं हैं। हारून पहली नज़र में ही शहरबानो का गुमसुम रवैया देखकर जान गया था। वो कुछ भी कहने की बजाय खामोश रही थी। आज वो लोग शहर जा रहे थे। अम्मा साईं इसका मुकम्मल चेकअप करवाना चाहती थी, इसलिए बेड रेस्ट और ग़िज़ा वगैरह की तफसील जानना चाहती थी, जबकि शहरबानो को इस चीज़ की कोई खुशी नहीं थी। उल्टा अपना आप कैदी नज़र आने लगा था। मगर शहरबानो, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी की है। हमारा बच्चा हमारी तकमील करेगा और हमें मज़ीद करीब लेकर आएगा। हमारा रिश्ता और भी मज़बूत होगा। हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी। वो दिल की गहराइयों से इज़हार करता इसे दोनों कंधों से थाम चुका था, जबकि वो तो हारून की शक्ल देखने से भी कतराती थी। इस वक्त भी नज़र चुरा गई थी। शहरबानो, मुझे अपना समझो, मैं तुम्हारा हूँ और कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगा। तुम मुझसे बदगुमान ना रहा करो, मेरा दिल बुझ जाता है। वो इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर जज्बातीपन का मुज़ाहरा कर रहा था और आज पहली बार आपसे तुम तक आया था। शायद वो ये समझ रहा था कि अब इनके बीच के फासले मिट गए हैं। अम्मा साई साथ जाने से कतरा तो रही थी, मगर हारून तसल्ली के लिए ज़बरदस्ती इनको साथ ले आया था। पहला दिन तो उन्होंने घर पे ही गुजारा था और डॉक्टर से टाइम ले लिया था। दूसरे दिन असर और मगरिब के दरमियान वो लोग अस्पताल जाने के लिए रवाना हुए थे। अस्पताल अच्छा है ना? अम्मा साईं के सवाल पे वो बेख्तियार हंस दिया था। नहीं, मैं आपको सरकारी अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। वो भला अच्छा कैसे हो सकता है? पगले, मेरे कहने का मतलब था कि डॉक्टर तो माहिर है ना, ऐसी भी होती हैं जो नई-नई सीख रही होती हैं और लोगों की जान खतरे में डाल देती हैं। अम्मा साईं ने मुस्कुरा कर कहा। अम्मा साईं, जिस तरह मैं आपको बहुत प्यारा हूँ, इसी तरह मुझे भी तो अपनी औलाद प्यारी है। इसने दिलचस्पी से कहते हुए शहरबानो की तरफ देखा, जो इन माँ बेटे की गुफ्तगू से यकसर अनजान और लाताल्लुक़ बैठी थी। सारा रास्ता यूं ही कट गया था। अस्पताल पहुँचकर हारून फिर अपने संजीदा मूड में आ गया था। डॉक्टर की हदायत और चेकअप के मुताबिक चंद इब्तदाई टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाया और फिर मस्बत रिपोर्ट लेकर वो लोग वहाँ से निकले थे। अलबत्ता शहरबानो की कमज़ोरी के पेश नज़र डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ तजवीज़ की थी, जो अस्पताल से फ़ौरी नहीं मिल सकी थी। लिहाजा हारून ने सड़क पार बने चंद मेडिकल स्टोर्स की तरफ रुजू किया था। आप लोग गाड़ी में बैठे, मैं दवाई लेकर आता हूँ। वो दरवाज़ा खोलकर इनको बिठा के सड़क क्रॉस कर गया था। अभी से गए 6-7 मिनट ही हुए थे कि इनकी गाड़ी का दरवाज़ा एक झटके से खुला था। लाला जी, शहरबानो चकरा गई थी। नीचे उतरो शहरबानो, वो उजलत में बोले थे। मगर लाला जी, शहरबानो नीचे उतरो। वो इसकी बात सुने बगैर इसका हाथ पकड़कर अपनी सिमत खींच चुके थे। ऐसे में अम्मा सही तरफ उठी थी। वो शहरबानो की हालत से वाकिफ़ जो थी।
माँ जी आप आराम से बैठी रहें, हम आपको नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, मगर अपने बेटे को इतना बता दीजिएगा कि किसी पे अचानक हमला नहीं करना चाहिए, बंदा सँभल नहीं पाता। वो एक ही बात में अपना हमला और हारून का हमला भी वाक़या कर गया था। अम्मा साईं इन्हें रोकने की पीछे जाने की कोशिश की, मगर इनके साथ मुसल्लह अफ़राद थे। शहरबानो कभी अम्मा साईं की तरफ और कभी लाला जी का गुस्सा देखती घसीटती चली गई थी। इसे कुछ समझ नहीं आया था कि ये अचानक क्या हुआ है। वो तो ये भी ना जान सकी कि अच्छा हुआ या बुरा। हारून के लिए सचमुच ये हमला बहुत कारी था और इस हमले से संभलना भी बहुत मुश्किल काम था, मगर हारून ने ये हमला सहकर दूसरों को भी संभाला था और अपने आप को भी। वो चाहता तो इनके इस एक्शन का रिएक्शन ले सकता था। वो पुलिस की मदद से भी अपनी बीवी, अपनी मनकूहा पर हक जता सकता था, मगर इसने जानबूझकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था, क्योंकि इसे पूरा यकीन था कि वो लोग शहरबानो की कंडीशन जान लेने के बाद ज़्यादा दिन अपने पास नहीं रखेंगे। और वैसे भी वो इस मसले को उछालना नहीं चाहता था, क्योंकि शहरबानो अब इनकी नहीं, हारून की अपनी इज़्ज़त थी और इसे ये भी पता था कि जिस ज़ंजीर में शहरबानो बंध चुकी है, वो इतनी कमज़ोर नहीं कि इससे रिहाई मुमकिन हो। शायद इसीलिए वो काफ़ी हद तक रिलैक्स था, क्योंकि अगर वो लोग कोई हतमी फ़ैसला करना भी चाहते तो उन्हें 100 बार सोचना था। और ये सच ही तो था। शहरबानो के वापस आने की खुशी सबको हुई थी। सभी बारी-बारी इससे मिलने आए थे। वो सभी को इसकी कमज़ोर हालत और ज़र्द रंगत पर अफ़सोस हुआ था कि इनकी बेटी गम में घुलकर आधी रह गई है। मगर जब औरतों पर असल बात का इंकिशाफ़ हुआ तो वो साकत रह गई थीं। "बच्चा, इस कमबख्त का बच्चा उठा लाई हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम अपने भाइयों का, अपने बाप का सदका थी, तुम अपना आप भी ना संभाल सकी? दाग लगा के रख दिया है इस लड़ी नस्ल को।" चच्ची बेगम ने अपना सीना पीट डाला था और शहरबानो घबराकर इनकी शक्ल देखने लगी। और फिर ये हुआ कि रफ्ता-रफ्ता सब औरतों का जमघटा सा लग गया था, जिसमें मुजरिम शहरबानो सर झुकाए शर्मिंदा ही मर जाने को तैयार बैठी थी। "काश तुम मर जाओ हारून गर्देज़ी, तुमने मुझे मेरे अपनों की नज़रों में गिरा दिया है। मैं मुजरिम बन गई हूँ।" इसने दिल ही दिल में हारून को बुरा-भला कहते हुए अपने आँसुओं को रोकने की कोशिश की, मगर दिल इतना भर आया था कि आँसुओं को रोकने के लिए जगह ना मिली थी और वो छलक ही आए थे। "अम्मा, क्या ज़रूरी है कि आप हर काम में मदाखलत करें? इसमें शहरबानो का क्या कसूर है?" ज़ोहरा इसके करीब आते हुए इसकी ढाल बन गई थी और अपनी माँ से खफ़ा होने लगी। "अरे कसूर क्यों नहीं है? ये इसे मना भी तो। प्लीज़ अम्मी, अल्लाह के लिए कुछ तो ख़याल कर लें। यहाँ कवारी गैर शादीशुदा लड़कियाँ भी हैं।" इसने सबकी सिमत इशारा किया था, जो शहरबानो का तमाशा देखने के लिए दिलचस्पी से खड़ी थीं। "ठीक है बीबी, मैं कुछ नहीं कहती, मर्द लोग खुद कह लेंगे," वो तनफ़ुर से कहती खड़ी हो गई। "मर्द लोग क्या कहेंगे? ये इसकी बीवी बन के गई थी, बहन नहीं, और बीवी पर वो हर हक जता सकता था। एक छत तले रहते हुए वो इतना भी मौलवी या परहेज़गार नहीं था कि इसे हाथ भी ना लगाता। और औरत कहाँ और कब तक भाग सकती है मर्द से? ज़ोहरा ने लड़कियों के जाते ही अपनी माँ को साफ-साफ सुनाई थी। शहरबानो और माजी तो ज़ोहरा के मशकूर हुई थी, लेकिन ज़ोहरा बेशक ज़ुबान की तलख़ व तेज़ थी, मगर दिल की खरी थी। वो पहले भी शहरबानो का भला ही चाहती थी और अब भी वो इसके हक़ में बोल रही थी और इसे साथ लेकर अंदर कमरे में चली गई थी, जबकि पीछे सरगोशियाँ और बातें शुरू हो गई थीं। शहरबानो को वापस आए हुए 3 माह हो चुके थे, मगर इन 3 माह में इसने जी भर के ख़फ़्फ़त, शर्मिंदगी और ज़िल्लत देखी थी। वो अपने ही घर में चोरों और मुजरिमों की तरह रह रही थी। घर के किसी भी मर्द के सामने नहीं जा सकती थी, किसी खुशी और गमी का हिस्सा नहीं बन सकती थी। तीनों चच्चियाँ और दोनों फूफियाँ भी इसको धुतकार बैठी थीं। सिर्फ़ माजी इसके लिए तड़पती थी। इन्हें पता था वो किस हालत में है, मगर फिर भी परेशान और फ़िक्रमंद रहती है, जिसकी वजह से इसकी सेहत बहुत ही ख़राब रहने लगी थी। वो इसे बहुत समझाती थीं, तसल्ली देती थीं, मगर इसे यूँ सबकी नज़रों से गिर कर जीना बहुत महाल लगने लगा था। वो अपने लिए बद्दुआएँ माँगती थी और माजी का कलेजा काँप जाता था। ऐसी परेशानी और टेंशन में सारे दिन गुज़र गए और शहरबानो के यहाँ बहुत ही प्यारा-सा बेटा पैदा हुआ था, जिसकी पैदाइश की खबर सुनकर सब हवेली वालों को साफ सूंघ गया था। "मुबारक हो शहरबानो, तुम्हारा बेटा बहुत ही प्यारा है, अपने माँ-बाप पर गया है।" ज़ोहरा ने खुले दिल से सराहा और नौमौलूद बच्चे को उठाकर प्यार भी किया था। शहरबानो बेसाख्ता रो पड़ी थी। इतने भरे पड़े ख़ानदान में से इसकी समाअतों को सिर्फ़ एक मुबारक सुनने को मिली थी। कहते हैं बेटे बाप का अक्स होते हैं और बेटियाँ माँ का, ये भी अपने बाप का अक्स ही लग रहा है। ज़ोहरा बच्चे को बगौर देखकर मुस्कुराई थी और फिर शहरबानो की गोद में डाल दिया था और बच्चे की मासूम चेहरे पर जैसे ही शहरबानो की नज़र पड़ी, इसके आँसुओं में शिद्दत आ गई थी। इसे पहला ख़्याल यही आया था कि अगर यही बच्चा हारून गर्देज़ी की हवेली में पैदा हुआ होता तो कई दिन तक पूरे गाँव में जश्न मनाया जाता, सदके दिए जाते, नज़र उतारी जाती। लेकिन यहाँ इसकी पैदाइश की खबर सुनकर हर माथे पर सलवट और हर चेहरे पर नागवारी के सिवा कुछ नज़र नहीं आया था, सिवाय माजी और ज़हरा के।
शहरबानो पागल हो गई हो क्या? ज़ोहरा ने इसका कंधा हिलाया था। शहरबानो के आंसू बच्चे के नरम और मुलायम चेहरे पर तवातर से गिर रहे थे और उसने कुसमुसाना शुरू कर दिया था। काश हारून गर्देसी ने हमें धोखा ना दिया होता, और अगर दे ही दिया था तो फिर मैं यहाँ दोबारा वापस ना आई होती। ज़ोहरा अभी मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सब मुझे कसूरवार समझते हैं। क्या मैंने कहा था कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ करे? पहले सबकी नागवारी मेरे लिए थी, अब मेरे बच्चे के लिए होगी। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? वो फिर से बलक उठी थी। इसके पास वापस चली जाओ, ज़ोहरा ने सीधा-सीधा हल बताया। क्या? वो चौंक गई थी। हाँ शहरबानो, अब अगर तुम मर भी जाओ तो तुम्हें वो पहले जैसा मुकाम हासिल नहीं हो सकता। कासिम लल्ला तुम्हें तुम्हारी चाहत या अपनायत में वापस नहीं ले आए, बल्कि हारून गर्देज़ी की ज़िद और इंतकाम में वापस लेकर आए हैं, ताकि इसे शिकस्त दे सकें। लेकिन शहरबानो, वो शख्स सारी ज़िंदगी तुम्हें जानता तक नहीं था, तुम्हारा नाम भी पता नहीं था, फिर भी वो तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी ज़िंदगी को एक फ़िज़ूल रस्म से बचाने के लिए सबके सामने डट गया था और अपने फ़ैसले पर कायम भी रहा। प्लीज़ प्लीज़ शहरबानो, इसे शिकस्त से दो चार मत करना, इसे हारने मत देना, प्लीज़ मेरी बात पर ध्यान देना। वो इसके फ़ैसले में इसका साथ देकर अपने रिश्ते को मज़ीद मज़बूत बना दो, वरना तुम ना यहाँ की रहोगी ना वहाँ की। ज़ोहरा ने इसे समझाते हुए इसके कंधे पे हाथ रखा था। ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ। तुम सबको छोड़कर अपने बच्चे के बारे में सोचो, जिसको तुम यहाँ इस हवेली में रहकर कभी कोई मुकाम नहीं दिला सकोगी। जो इतने बड़े ख़ानदान और जागीर का वारिस है, वो यहाँ एक मुलाजिम बनकर रह जाएगा, सिर्फ तुम्हारी नादानी की वजह से, क्योंकि बेटियां तो हमेशा ही माँ बाप का घर छोड़कर चली जाती हैं। हर बेटी को रुखसत होना ही होता है। तुम अकेली तो नहीं हो जो यहाँ से जाओगी। हर बेटी पर फ़र्ज़ होता है कि वो माँ बाप का कहा माने और इनकी इज्जत की लाज रखे। तुमने भी ये सब किया। इनके कहने पे हारून गर्देसी से शादी की और इनकी लाज रखी। अब ये हारून गर्देसी का मसला था कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम इसकी बीवी हो और बीवी पे फ़र्ज़ है कि तुम इसका कहना मानो और इसका साथ दो। अब तुम पे ज़्यादा हक तुम्हारे माँ बाप का नहीं, बल्कि तुम्हारे शोहर का है, और तुम्हारा शोहर ने अगर हमारी सदका रस्म को तोड़ा है तो अच्छा किया है, क्योंकि इस रस्म का जिक्र ना तो हमने कुरान पाक में पढ़ा है। ये दरअसल खुद साख्ता रस्म है जो हम लड़कियों को जिंदा दफन करने के लिए बनाई गई है। जिसने पुप्पी फातिमा को निगल लिया और जो कासिम लला की बेटी जरीना को निगलने के लिए तैयार खड़ी है। शहरबानो, अपने और अपने बच्चे के बारे में ना सही, मगर एक बार 10 साला ज़रीना के बारे में ज़रूर सोचना, जो आइंदा इस रस्म की भेंट चढ़ने वाली है। और हाँ, कासिम लला और बाबा साईं सैयद सिराज हुसैन चंद दिनों तक हारून गर्देसी से तुम्हारी तलाक की बात करने जा रहे हैं। अब ये फैसला तुम पे है कि तुमने यहाँ रहना है या इसके साथ इसकी सुहागन बन के रहना है। और ये कभी मत भूलना कि मैं और ताई अम्मा तुम्हारे साथ हैं। ज़ोहरा साफ साफ लफ्ज़ों में सब कुछ कहकर इसे बीच में मंझधार छोड़कर चली गई थी। शहरबानो सोच के समंदर में अकेली डूब रही थी, और इस समंदर में एक ही जजीरा था, हारून करदेसी, जो इसे पनाह दे सकता था खुले दिल से। और इस समंदर में एक ही भंवर था, तलाक, जिसमें डूबकर वो और भी बेटियों को डुबो सकती थी। सैयद मेराज हुसैन बेटी की तलाक के हक में नहीं थे। उन्होंने सैयद सिराज हुसैन और सैयद कासिम हुसैन का फैसला सुना तो उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो कायल नहीं हुए थे, हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की थी। जो बात जहाँ है इसे वहाँ ही रहने दो कासिम हुसैन, हमारी लड़ी में तलाक को बहुत बुरा समझा जाता है, और ये बुरा अमल शहरबानों के पल्लू से मत बांधो। वो थके थके से बोले थे। हमारी लड़ी में तो सबका रस्म के टूटने को भी बुरा समझा जाता है अब्बा साईं, लेकिन कासिम हुसैन, बेहतर है कि इस मामले को दबा रहने दो। क्यों छेड़ रहे हो दोबारा से? इसलिए छेड़ रहा हूँ कि हारून गर्देसी बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रहा है। वो अभी भी शहरबानों पे अपना हक समझे बैठा है, लेकिन मैं इसका हर हक ख़त्म कर देना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। कासिम हुसैन का लहजा बेहद सख्त था। शहरबानों से पूछा तुमने, वो क्या चाहती है? सैयद मेराज हुसैन बहुत समझदार आदमी थे। उन्हें पता था कि शहरबानो अब अकेली नहीं है, इसका बेटा भी है। वो खुद इससे नफ़रत करती है, वो भी इसके साथ रहना नहीं चाहती, और अगर ऐसा करेगी तो हमारे लिए हमेशा के लिए मर जाएगी। सैयद कासिम हुसैन गुस्से से लाल हो रहे थे और सैयद मेराज हुसैन चुप से हो गए थे। वो फिर सैयद कासिम के कहने पर सैयद मेराज हुसैन ने हारून गर्देसी के साथ एक मीटिंग रखी थी, और मुकर्ररा वक्त पर इसके शहर वाले घर पर चले आए थे। तलाक का लफ्ज़ अभी भी हारून के दिमाग को चुभन दे रहा था। जब से सैयद सिराज हुसैन गए थे, वो मुसलसल इसी लफ्ज़ के मुतल्लिक सोच रहा था, और साथ साथ ये भी खदशा पल रहा था कि अगर शहरबानो ने कह दिया कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो फिर मैं इसे कैसे कन्विंस करूँगा? मेरे बेटे का क्या होगा? वो सारी ज़िंदगी या तो माँ के पास रहेगा या फिर बाप के पास। उफ़ खुदाया, अपना करम करना मुझ पर।
वो रॉकिंग चेयर पर झूलते हुए अपने दोनों हाथों में अपना सर थाम चुका था। इसे सुबह हवेली जाना था, शहरबानों से मिलने, और अभी तक समझ नहीं आया था कि इस मसले का असल हल क्या होगा। शहरबानों को यहाँ से गए हुए 7 माह हो चुके थे और अब तो इसका बेटा तकरीबन 2 माह का होने वाला था, और हारून ने अभी तक ना शहरबानों का ममता भरे अंदाज में देखा था और ना ही बेटे की शक्ल देखकर दिल सैराब किया था। बल्कि ऐसा दिल सैराब करने के लिए तो हारून गर्देजी के घर वाले भी तरसते थे। रहमान गर्देजी, जमान गर्देजी और बड़ी अम्मा तो बात बात पे अपने पोते का जिक्र कर करते थे, जो इन्हें चाहकर भी मिल नहीं रहा था, और यही बात हारून को डिस्टर्ब कर किए हुई थी। वो यकी हकीकतन परेशान था कि फैसला क्या होगा, क्योंकि वो खुद भी सैयद सिराज हुसैन से वादा कर चुका था, मर्दों वाला वादा। बीबी जी, आपको छोटे साईं ने अपने कमरे में बुलाया है। शहरबानो सुबह सुबह बच्चे को माँ जी के हवाले करके कुरान पाक की तिलावत करने बैठ जाती थी और सूरज की किरणें निकलने तक तिलावत करती रहती थी। अभी भी वो सिपारा ख़त्म करते हुए कुरान पाक सुल्तान में लपेट रही थी जब मुलाजमा ने आकर इतला दी थी, और चचा साईं के बुलावे का सुनकर शहरबानो का दिल काँप गया था। इतने अरसे में पहली बार उन्होंने इसे बुलाया था। कहाँ जा रही हो बेटा? मुझे चचा साईं ने बुलाया है। खैरियत तो है? पता नहीं माँ जी, मैं बात सुनकर आती हूँ। आप उस्मान का ख्याल रखिएगा। वो कहकर चली गई थी, लेकिन माँ जी के माथे पर फ़िक्र की लकीरें बन गई थीं। मैं अंदर आ सकती हूँ? चचा साईं, इसने दस्तक देकर पूछा था। आ जाओ शहरबानो, बैठो यहाँ। उन्होंने सामने सोफे की सिमत इशारा किया था। जी, आपने बुलाया था मुझे? इसने सर झुकाते हुए मुश्किल पूछा। हाँ, तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया था कि आज दोपहर को हारून गर्देजी यहाँ हवेली आ रहा है तुमसे मिलने, और शायद कोई बात करने। लेकिन बेटा, हमने तुमसे सिर्फ इतना कहना है कि हमने तुम्हारी तलाक का मुतालबा किया है इससे, और अब तुमने हमारी हाँ में हाँ मिलाकर हमारे फैसले और मुतालबे की तस्दीक करनी है। इसे हर हाल में तलाक देना ही पड़ेगी, वो चाहे कुछ भी कहे। इसकी बातों में मत आना। हम इससे कह चुके हैं कि तुम भी इस फैसले में रजामंद हो, तुम इसके साथ नहीं रहना चाहती। सैयद सिराज हुसैन ने अपने कहे को सच साबित करने के लिए शहरबानों को झूठ पर उकसाया था, वो भी काफ़ी रोब और बेनियाजी से। ठीक है, अब तुम जाओ, जब वो आएगा तो तुम्हें बुला लेंगे। शहरबानो को फैसले की सूली पर लटकाकर वहाँ से जाने का हुक्म दे दिया था, और फैसला भी कैसा, जिस पर अमल पैरा तो वो पहले ही हो चुके थे। अब तो आखिरी कदम बाकी था, लेकिन इस आखिरी कदम का सुनकर शहरबानो के कदम वापस अपने कमरे में जाते हुए लड़खड़ा रहे थे। इसके हाथ बर्फ होने लगे थे। शहरबानो, पीछे से ज़ोहरा ने पुकारा। सुबह सुबह अब्बा साईं के कमरे में खैरियत तो है ना? वो खुद ही इसके करीब आ गई थी, लेकिन शहरबानो ने कुछ भी कहने के बजाय इसकी सिमत खाली खाली नजरों से देखा था। गुमसुम और नासमझ से अंदाज में देखने के बाद वो खामोशी से पलटकर अपने कमरे में चली आई, जहाँ उस्मान ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा था, और माँ जी इसे चुप करवाते हुए हलकान हो रही थी। क्या हुआ है शहरबानो? अब्बा साईं ने किस लिए बुलाया था? ज़ोहरा इसके पीछे ही चली आई थी। बोलो ना, क्या बात कही उन्होंने? इसे बेचैनी होने लगी थी। हारून गर्देजी से मेरी तलाक की बात करके आए हैं, और वो आज यहाँ हवेली आ रहा है मुझसे तस्दीक हासिल करने के लिए कि क्या मैं तलाक चाहती हूँ या नहीं। इसने सपाट से अंदाज में बताया था। और अब्बा साईं ने क्या कहा तुमसे? कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं इस फैसले में बराबर की शरीक हूँ। शहरबानो ने कहते हुए एक नज़र रोते बिलखते उस्मान की सिम देखा। नहीं शहरबानो, तुम इनके फैसले में हरगिज़ शरीक नहीं हो। ज़ोहरा ने सख्ती से तरदीद की थी, और माँ जी भी हद से ज़्यादा परेशान हो गई थी। घर से निकलते वक्त हारून ने अब्बा साईं और चचा साईं को फ़ोन करके बता दिया था कि वो शहरबानो से मिलने हवेली जा रहा है और किसी हतमी फैसले के लिए जा रहा है। वो सुनकर खुश तो हुए ही थे, लेकिन परेशान भी हो गए थे कि इनकी हवेली अकेले मत जाओ, इंतकाम में लोग कुछ भी कर डालते हैं, इसको नुकसान भी पहुँच सकता है, और तनहा जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मगर हारून ने इन्हें तसल्ली दी थी कि वो तमाम बंदोबस्त करके जा रहा है। इसे नुकसान पहुँचाने की सूरत में वो लोग खुद बुरी तरह फंस सकते हैं, और वो हर तरफ से मुतमिन होकर शाम 4 बजे हवेली पहुंचकर हवेली के बड़े से गेट पर हॉर्न दे रहा था। हवेली वालों को पहले ही इत्तला मिल चुकी थी, इसलिए गेट खुलता चला गया था। हवेली के बड़े से लॉन की साइड में बनी रोश पर चक्कर काटकर इसकी मर्सिडीज गाड़ियों के साथ आ रुकी थी, जहाँ एक मुलाजमा इसकी मदद के लिए पहले से तैयार खड़ी थी। वो गाड़ी से उतरा ही था कि वो आगे बढ़ आई थी। आइए साहब। वो सर हिलाकर मुलाज़िमा के पीछे चल दिया था। तवील राहदारी और ड्राइंग रूम का अहाता गुजरने के बाद मुलाज़िमा इसे गेस्ट रूम में छोड़ गई थी, जहाँ सैयद सिराज हुसैन और सैयद कासिम हुसैन पहले से मौजूद थे। बैठो, उन्होंने सोफ़े की सिमत इशारा किया था। शुक्रिया, वो रिलैक्स से अंदाज में बैठ गया था। कुछ सोचा तुमने? उन्होंने नपे-तुले अंदाज में पूछा था। जो कुछ आपसे कह चुका हूँ, इसके बाद सोचने की गुंजाइश नहीं निकलती मुर्शिद साईं। अगर मेरी बीवी मेरे साथ रहना चाहती है तो आप चाह के भी नहीं रोक सकते, और अगर वो मेरे साथ रहने से इनकार करती है तो मैं आज ही तलाकनामे पे साइन कर दूँगा। इसका लहजा मज़बूत था। ठीक है, अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो हमसे सारे रिश्ते तोड़कर हमेशा के लिए जा सकती है, और अगर वो तुम्हारे साथ नहीं
रहना चाहती तो तुम्हें ये रिश्ता तोड़कर जाना होगा। तलाक के कागज़ात तैयार रखे हैं, इन पर साइन कर देना। चलो कासिम हुसैन, इसे फैसला करने दो। वो टेबल पर रखे कागज़ात और पेन की सिमत इशारा करके खड़े हो गए थे और सैयद कासिम हुसैन भी बाहर निकल आए, क्योंकि शहरबानो ने भी फैसला सुनाने के लिए अंदर आना था। मुलाजमा इसके लिए चाय और साथ में काफ़ी लवाज़िमात लेकर आई थी, मगर हारून को इन चीज़ों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ शहरबानो से मतलब था। लेकिन फिर भी एक अच्छे मेहमान की तरह इसने चाय का कप उठा लिया था। ब्लैक पैंट और वाइट टी शर्ट में मलबूस, टांग पर टांग चढ़ाए, हाथ में चाय का कप लिए वो बहुत शाहाना अंदाज में बैठा इतना पुरसुकून लग रहा था कि इसे देखकर शहरबानो का दिल धड़क उठा था, और शायद धड़का भी पहली बार था, और इस धड़कने का पता हारून को भी चल गया था। तभी तो चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ वो खामोश सर झुकाए खड़ी थी। शहरबानो वो एकदम कप एक साइड पे रख के सोफे से खड़ा हो गया। कैसी हो तुम? वो अपने दिल की तड़प पे काबू पाते हुए, अपने आप को कंट्रोल करते हुए इसके करीब आया था। वरना दिल चाह रहा था कि इतने दिनों बाद मिलने पर इसे अपनी बाहों में भर डाले, ताकि इतने दिनों से बेचैन दिल कुछ संभल जाता। खामोश क्यों हो शहरबानो? अब तो तुम अपने घर में हो, पहले तुम मेरी कैद में थी, अब मैं तुम्हारी कैद में हूँ। जो चाहो फैसला सुना दो, तुम्हें पूरा पूरा इख्तियार है, तुम हाकिम हो इस वक्त और मैं गुलाम। हारून ने भारी संजीदा आवाज़ में कहते हुए इसको दोनों कंधों से थाम लिया था, और इसके हाथों की सख्त गिरफ्त से इसकी कमज़ोर जान को एक मजबूत सहारा मिला था। बोलो शहरबानो, क्या करोगी आज, कैद या आज़ाद? इसने इसके कंधों पर दबाव डाला और इसे कुछ कहने पे उकसाया था। इससे पहले कि वो इसका चेहरा ऊंचा करता, वो एकदम फूट फूट कर रोती हुई हारून के सीने से लग गई थी। इसके सब्र का दामन छूट चुका था, लेकिन इसकी इस बेख्तियार हरकत पर हारून का बेचैन दिल संभल गया था। इसकी तड़प को सुकून सा मिला था और तसल्ली हुई थी कि वो इसे अपना कैदी रखना चाहती है, आज़ाद नहीं छोड़ सकती। थैंक यू शहरबानो, थैंक यू सो मच। वो इसे बाहों में खींचते हुए बेपनाह खुश हुआ था। शहरबानो ने इसे शिकस्त से बचा लिया था, इसने इसकी मेहनत को रायगा होने से बचा लिया था, इसने इस रस्म को तोड़ते हुए सैयद कासिम हुसैन की बेटी जरीना को बचा लिया था, वरना जाने कितनी बेटियों की ज़िंदगी को कब्र बनने से बचा लिया था। चाहे इसके लिए इसे अपनों से हमेशा के लिए बायकॉट करना पड़ रहा था, मगर ये सौदा महंगा नहीं था, और इस सौदे पर ज़ोहरा और माची बहुत खुश थीं। उन्होंने शहरबानो का हौसला बढ़ाया था और साथ ही इसका छोटा मोटा सामान भी तैयार कर दिया था। उस्मान को नए कपड़े पहनाए थे और जी भर के प्यार किया था। तब जाकर शहरबानो हारून से मिलने गेस्ट रूम में आई थी। मुझे क्या पता था तुम मुझे इतनी बेताबी और ऐसे वालेहाना अंदाज से मिलोगी, वरना कसम से पहले ही मुर्शिद साईं के साथ ये मीटिंग तय कर लेता। बहुत बड़ी गलती की मैंने देर करके। वो अपने आप को शरारत से कोस रहा था, और शहरबानो इसकी बात सुनकर एकदम इससे अलग हो गई थी। चेहरा सुर्ख पड़ गया था। ओके यार, कोई बात नहीं, बाकी की कसर घर जाकर पूरी कर लेना, जब तक तुम कहोगी मैं तुम्हारे सामने से नहीं हटूंगा। इसने शहरबानो का चेहरा ऊंचा करते हुए इसे छेड़ा था। प्लीज़ हारून, वो रुख मोड़ गई थी। हारून की जान, दिल खरीद लिया है तुमने तो। वो बड़े फ्रेश मूड और बड़ी तरंग में था जब इसने इसे ब्रेक लगाई थी। क्या वापस नहीं चलना आपने? चलते हैं यार, चलते हैं। पहले तुम मेरे शहज़ादे को तो लेकर आओ, तब तक मैं तुम्हारे चचा साईं यानी अपने मुर्शिद साईं से मिलकर मामला संभालता हूँ। वो शहरबानो को मोहब्बत भरा लम्स देकर बाहर निकल आया था, और शहरबानो को हारून के साथ जाने के लिए तैयार देखकर सैयद सिराज हुसैन के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी थी, और सैयद कासिम हुसैन का चेहरा गुस्से से लाल बबूका हो गया था, जबकि सैयद मिराज हुसैन और बाकी सभी अफराद खामोश थे। शहरबानो ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि सैयद मिराज हुसैन ने इसे वहाँ से चले जाने का इशारा किया था, क्योंकि इन्हें पता था कि इसका कुछ भी कहना फ़ज़ूल है, कोई भी नहीं सुनेगा। और शहरबानो सब पर एक सिसकती हुई नज़र डाल के पलट गई थी, लेकिन कदम बहुत मज़बूत थे, और इस रस्म को तोड़ डालने का ख़याल और अज़म इससे भी ज़्यादा मज़बूत था। इसका बैग हारून ने थाम रखा था, जबकि उस्मान को शहरबानो ने अपनी आगोश में भींचा हुआ था। रब रखा शहरबानो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद और सदा सुहागन रखे। ज़ोहरा ने इसकी गाड़ी के करीब आते हुए कहा था। माँ जी भी इन्हें रुखसत करने के लिए आई हुई थी। बहुत शुक्रिया माँ जी, आप कभी भी फ़िक्र मत करना, आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा, ये मेरा वादा है, इसने मुस्कुरा कर कहा। जीते रहो बेटा, खुश रहो, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। उन्होंने बहुत सी दुआओं के साथ उन्हें रुखसत किया था, और हारून एक फरसुदा रस्म को तोड़ देने की खुशी में सरशार उस्मान को बार-बार प्यार करता और शहरबानो को शरारत से छेड़ता हुआ अपने गाँव की सिमत गामज़न था। और शहरबानो को यकीन हो चुका था कि अगर इंसान का इरादा और अज़म नेक हो तो ताबीर पा ही लेते हैं, जैसे हारून ने पाई थी। क्योंकि नेक इरादा इसने किया था और ताबीर अल्लाह ने दी थी। ख़त्म शुद। और कैसा लगा आपको ये नावल? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। अम, फिर मिलते हैं किसी दूसरे नावल के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।